So today we are going to start a new topic that is digital assets. So cryptocurrency. So today we are going to start cryptocurrency, Bitcoin, how it works. And आज के वीडियो में in today's video, I will try कि आपको you don't need to go anywhere else. I will try to you know uh, I will try to cover up all the concept related to cryptocurrency. All right. So guys, cryptocurrency is something that is going to change the world, right? It is a phenomena that is going to happen, and no one can stop it. It is the future, guys, right? It just like that. We are moving ahead in the era of artificial intelligence. So many people are saying against it, some people are saying in the favor of it, but no one is saying this that we will be, we will, it's not going to happen. It is something inevitable, guys. No one can stop it, and nobody knows what's going to happen. Same case is with cryptocurrency. Cryptocurrency is the future of finance. It is the future and it's going to stay. It just right now everyone is blind, closing their eyes and everyone is denying in a denial mode, or you can say government is trying to regulate it as much as possible. But in the long run, if I tell you it's something that is a phenomena and that is going to happen and no one can stop it. It is the future, right? We are heading towards a decentralized फाइनेंशियल सिस्टम जब पावर आम इंसान के पास ही आने वाली है. This is what happened when internet took place, right? Earlier everything was you, कुछ भी आपको देखना होता था, you used to see television, you used to watch DD1 national news channels, right? But today you have decentralized information system, that is internet. आप इंटरनेट पे पढ़ाई कर सकते हो, आप इंटरनेट में एंटरटेनमेंट कर सकते हो. इट इज विद एवरीवन एंड इट इज फ्री. एंड गाइस, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड. हर कोई अब स्टूडेंट है, हर कोई कुछ भी कभी भी किसी भी एज में सीख सकता है. Everyone can travel anywhere. Means it is everywhere, guys. You can't stop internet. So this is outcome of technology. Cryptocurrency is outcome of technology, guys, and it is something that is going to stay, and it's going to change everything, and it is changing. All right. Now, today the topics which we are going to cover, we are going to start this topic, with some stories. हम कुछ stories को पहले समझने वाले हैं. We need to understand first why Bitcoin came. What is the purpose of Bitcoin? And हम अपनी करेंसी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? Why people can ditch their own currencies, right? So we're going to study about dollar, we're going to study about Indian rupee, we're going to study how one world, one currency concept can really change the entire scenario of world demographic, right? We are going to see the technology behind the Bitcoin or the cryptocurrency, and the technology involved is distributed ledger technology, blockchain, mining. Don't worry, guys. I'm going to explain it as simple as possible because in concepts में लोग बहुत confused हो जाते हैं. So I'm going to explain it in a very simplistic way, in a very lucid format, right? And then I'm going to show you a few applications and the practical part of that as well. Now I want to start this topic with an imagination, guys. Close your eyes and just imagine. एक दुनिया, one world, one currency, no borders at all. You can go anywhere. आप कहीं भी जा सकते हो. You don't need any visa. There are no borders. There is no country thing. You are a global citizen. So global citizen means you are a global employee as well. So whatever you are doing, you are working throughout the world. World is just one place to live. Just imagine. So in that world, there is no transaction system, exchange rate system, just one currency throughout the world. And that too works completely free on demand and supply. No government involvement. Just imagine a world. कोई ट्रांजैक्शन रेट नहीं है यहाँ पे. आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है. यू डोंट हैव टू आस्क गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजैक्शंस कि 9 से 5 ही ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद नहीं हो सकती है, राइट? सो एंड दैट टू देयर इज नो एक्सचेंज रेट्स एज वेल, डॉलर टू आईएनआर, आईएनआर टू यूरो, कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज जस्ट वन करेंसी, and that to demand and supply basis. There is no involvement of government. It is complete laissez-faire, 100% capitalism. Just imagine that, guys. Imagine a world without visa. Imagine a world with just one currency, guys. Imagine a world with no borders. Imagine a world where you can move anywhere without any permissions. Imagine a world where you can study anywhere in the world.
इट्स नॉट कि आपको अपने गांव में अपने छोटे टाउन में ही पढ़ने, कैन स्टडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? बट गाइस, इज इट रियली रियलिस्टिक? क्या ये हो भी सकता है? मींस व्हाई गवर्नमेंट would allow such kind of things to happen? गवर्नमेंट ऐसा कैसे करने दे सकती है? मींस हाउ कैन आई गो टू चाइना इन टाइम? मींस governments are there who will and who is trying to regulate all the things. Everything is strictly monitored. हम लोग फ्री नहीं होने दे सकते सबको. There are multiple social reasons behind that as well. But guys, government can't just open the borders, right? We need visas. So many people will come and get settled in good countries otherwise. We can't just let anyone study anything, guys. हम सबको सब नहीं पढ़ा सकते, right? We can't give jobs to everybody. There will be a exchange rate. There will be a currency system in the world. You need to have permissions, right? But I'm just giving you a glimpse, guys. Maybe in future we are heading towards this time कि जब there will be global employment, global citizenship concept, borders will start, disappearing. How? Internet ने ये already कर दिया है. You can study lectures from MIT, Stanford University, which are available in YouTube at free of cost, right? आप यहाँ बैठे बैठे आप देख सकते हो व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, व्हाट इज हैपनिंग इन योर इन पाकिस्तान, इन नेपाल. यू कैन सी एवरीथिंग. Everything इज अवेलेबल इन इंटरनेट, राइट? थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. अब पहले आपको पैसे भेजने के लिए हैड टू गो टू बैंक 9 से 5, दैट्स इट. अब you can send money any point of time. रात को 12 बजे 1 बजे, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल इंटरनेट had changed digital, transactions. So we are moving towards a free world. And why I gave you this thing, guys? अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा why we as a citizen of this world, why a chance in future may arise that people may ditch their currencies. ऐसा क्यों हो सकता है in future कि हमें अपनी करेंसी से भरोसा उठ जाए? Why that? Why there could be a chance कि हमें ऐसा लगे यार, इंडियन रूपी और मे बी एज पर द बेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, यूरो और डॉलर, इवन दे कैन कोलैप्स, राइट? तो हमारे पास कुछ तो ऐसा हो जिससे हम ट्रांजेक्शन कर पाए. टुडे, so let's start with dollar. The currency which everybody likes and everybody has a trust on dollar, right? Dollar के ऊपर सबको भरोसा है. Me, you, all the countries of the world, right? Now we need to understand dollar पहले ऐसा बना क्यों. We need to understand that, guys. After uh, जब हमारे country पे, when in the Asian countries Europeans were ruling, right? They became really powerful and really very rich, financially very strong. They looted our country. बहुत सारा पैसा लेके गए वो. But because of World War One, World War Two, they drained their entire wealth. जो पैसा कमा के लेके गए थे ना, वो सारा पैसा लॉस हुआ. They lost everything in weapons and in that war, basically. At that point of time, USA emerged at the power capital of the world. सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज यूएसए में थी. पीपल वर हार्ड वर्किंग, इट वाज समथिंग दैट वाज इमर्जिंग. एंड ये जो यूरोप में वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्होंने अपने जो हथियार, दे परचेज देयर एनिमेशन, द द द वेपन्स फ्रॉम यूएसए बेसिकली. तो यूएसए और अमीर बना. एंड स्लोली एंड स्टेडीली यूएसए, वेरी स्ट्रेटेजिकली यूएसए ने सारे वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू किया विथ हिज करेंसी. एंड इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली. हाँ, हम समझने वाले कैसे, लेट्स सी. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज क्रूड ऑयल, तेल, पेट्रोल, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट था. आज तो पेट्रोल और क्रूड ऑयल की वैल्यू कम हो रही है बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर टेक्नोलॉजी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी व्हीकल्स. बट उस टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ऑयल. एंड सबसे ज्यादा ऑयल था गल्फ कंट्रीज में. तो यूएसए ने इन गल्फ कंट्रीज को सपोर्ट किया कि आप तेल बेचो, यू सेल द क्रूड ऑयल, बट इन आवर करेंसी, इन डॉलर्स. आप हमारे करेंसी में बेचो, अपनी लोकल करेंसी भी नहीं, हमारी ही करेंसी बस. बदले में इनको क्या दिया? बदले में इनको प्रोटेक्शन दी यूएसए ने. यूएसए सेड आई विल प्रोटेक्ट यू financially, I will protect you military wise as well. So these countries, together these countries came, they made a cartel. That cartel is called as OPEC. I want you to Google the full form of OPEC, guys.
और इन सारी कंट्रीज को सपोर्ट किया यूएसए ने, एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएसए वर फ्रेंड्स लाइक दिस, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इन ऑल द एस्पेक्ट्स. And this is how the dollar became world trade, currency. अभी चल रहा है प्रोसेस. This process is still going on. So the most important thing that entire world used to buy at that point of time was crude oil, and USA ने अपनी मोनोपोली करना शुरू किया. Then USA started an organization called IMF, and then the World Bank. अब क्या हुआ धीरे धीरे आईएमएफ ने पूरे वर्ल्ड की पॉलिसीज ऐसी बनवाना शुरू की. मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा है गाइस, मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में हमारी सीरीज है, उसमें प्लीज वॉच इट. So what happened? USA tend to, manipulate all the monetary policies of the world, and they made it, inclined towards capitalism. सारी मार्केट दुनिया की ओपन की उन्होंने. लेजी फेयर, दे ट्राई टू ब्रॉट लेजी फेयर. लेजी फेयर होता है ओपन मार्केट, जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है. इट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म. एंड जितना भी लोन था सब डॉलर्स में देना शुरू किया. Same happened with the World Bank. They gave loan in terms of dollars only. Now, slowly and steadily, guys, just see it is very strategically happening. ऐसा नहीं कि overnight हुआ है. So all these things are happening very strategically and slowly and steadily. Dollar is becoming, world trade currency. USA की hegemony, USA powerful country emerge होना शुरू हुआ, right? बट द थिंग वाज दैट यहाँ तक सब अच्छा चल रहा था. यूएसए वाज डूइंग गुड, और सभी को ऐसा लग रहा था उस टाइम में दैट यूएसए इज नेवर गोइंग टू फॉल. यूएसए इज इनएविटेबल. यूएसए इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. बट गाइज, यूएसए हैड वॉर्स. One of the war was Vietnam War, when USA had a very bad time. यूएसए का भी गोल्ड रिजर्व कम हुआ. यूएसए की, द ऑल द इंटरनेशनल करेंसी फॉरेक्स रिजर्व था वो भी इनका कम हुआ, एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दे आल्सो वेंट डाउन. इट मींस दुनिया को ऐसा लगा दैट इवन यूएसए एज अ बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कैन कोलैप्स. यूरोप तो पहले कोलैप्स हो गया था वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के टाइम में. तभी उनको इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था उस टाइम में. दैट्स व्हाई दे लेफ्ट इंडिया. हमें आजादी इसलिए नहीं मिली है बिकॉज हम वी फॉट. हमें आजादी का एक रीजन ये भी था दैट दे वर द यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली यूके, इंग्लैंड, उनकी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी बैड. वो भागना चाहते थे यहाँ से. दे वांटेड टू रन. उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए थे वर्ल्ड वॉर में. द सेम वाज हैपनिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, देयर गोल्ड रिजर्व डिक्लाइन. धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट डॉलर से कम होना शुरू हुआ. अभी गाइस सिर्फ ट्रस्ट कम हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है. वी आर गोइंग टू सी वन मोर चैप्टर, वन मोर स्टोरी इज कमिंग ऑन द वे. तो धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगा अगर डॉलर का, अब होता क्या था, हर कंट्री डॉलर खरीद के रखता है. मींस फॉर एग्जांपल इंडिया ने भी डॉलर्स खरीद के रखे फॉरेक्स में, बुरे टाइम में काम आएगा. जैसे आपके फैमिली में, इन योर फैमिली एज वेल, योर मदर, शी सेव्स एंड शी हाइड्स सम गोल्ड, सम करेंसी, सम थोड़ा पैसा संभाल के रखते हैं. कभी चावल के उसमें रखते थे पहले, अब तो चलो सारी चीज चेंज हो गई है, बट पहले चुपके से सोना संभाल के रखते थे, थोड़ा कैश संभाल, ताकि इमरजेंसी में काम आए. हर कंट्री ऐसा करता है. हर कंट्री डॉलर्स ना अपने पास रखता है संभाल के. बट जस्ट गाइस, हमने डॉलर रखे हुए हों और यूएसए ही फेल हो जाए, देन करेंसी तो वेस्ट, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट. This I'm creating a doubt in your mind, guys, on the currency, right? अब यूएसए ने क्या किया, उनके पास गोल्ड खत्म हो गया था. दे स्टार्टेड फिएट करेंसी. फिएट करेंसी होता है, पहले क्या होता था, $1 प्रिंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज डॉलर, इफ आई वांट टू प्रिंट $1, आई हैव टू कीप बैकअप ऑफ $1 इक्वलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड, विच इज इक्वल टू $1. तो जितना डॉलर में प्रिंट करूंगा उतना ही मेरे पास गोल्ड होना चाहिए. बट यूएसए का तो सारा गोल्ड इस वॉर में यूज हो गया. So USA ने नया सिस्टम ऑफ करेंसी प्रिंटिंग इवॉल्व किया. दैट वाज द करेंसी विच वाज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड एनीमोर. इट वाज फिएट करेंसी. एंड फिएट करेंसी वर्क्स ऑन ओनली वन थिंग, ट्रस्ट. कि बस आप उन पे भरोसा रखो, आपका पैसा हम नहीं डूबने देंगे. दैट्स इट. नो बैकिंग ऑफ गोल्ड. एंड बिकॉज ऑफ दैट, सिंस टिल नाउ इट इज ऑल्सो डूइंग गुड, बट यूएसए ने उसके बाद बहुत पैसा छापा. दे प्रिंटेड अ लॉट ऑफ करेंसी, लॉट ऑफ डॉलर्स, राइट. नाउ सर ये सब तो ठीक है, ये कहानी बताई क्यों? स्टोरी बिहाइंड दिस वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी currency in the world is dollar. 100, 50 years back, even today as well, and after a few years, it will be dollar. But I want you to imagine one thing again, once more. Just imagine, guys,
अगर ये डॉलर कोलैप्स हो जाए तो, यूएसए एज इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए तो, क्या डॉलर इनविंसिबल है? इज डॉलर इनफॉलिबल? क्या डॉलर भी कोलैप्स हो सकता है? सो देयर वर मल्टीपल फाइनेंशियल इवेंट्स दैट टुक प्लेस, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसकी वजह से लोगों को डाउट तो आया। मैनी कंट्रीज दे गॉट सस्पिशियस, यार यूएसए ही कोलैप्स हो गया फिर, right? Now, you might have heard the story, guys, the story of debt crisis. Let me start from 2008 crisis. Guys, इसको ऐसा बोलते हैं, it was a mortgage crisis. इसमें क्या हुआ था, बैंक्स ने इतना ज्यादा लोन दिया, इतना ज्यादा लोन दिया, इजी लोन। कल को आई वाज, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, मैं बैंक के पास जाऊं, मुझे लोन दो, उन्होंने दे दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी, एनी कोलेटरल। और मैंने उसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को मैंने किराए में चढ़ा दिया, तो वहां से जो किराया आता था मैं देता था, बैंक का इंटरेस्ट, आई वाज रिटर्निंग दैट थिंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस इंसान से मुझे किराया आता था, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी जॉब चली गई, मुझे किराया मिलना बंद हो गया, और बैंक को अपना मंथली इंस्टॉलमेंट मिलना बंद हो गया। सो दिस इज अ चेंज दैट वाज हैपनिंग। अब जिस इंसान की जॉब गई, वो उसी बैंक के पास वापस गया कि मुझे मेरे डिपॉजिट वाले पैसे वापस कर दो। तो बैंक ने कहा, वी डोंट हैव द मनी राइट नाउ, हमने तो लोन दिया था प्रणय। जस्ट इमेजिन, मेरे डिपॉजिट, जैसे आपने पैसे डिपॉजिट किए हार्ड वर्क करने के बाद, और बैंक मना करते सेविंग अकाउंट में कि आपको पैसा नहीं मिल सकता, यू 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 विल नॉट गेट ए मनी बैक, योर हार्ड अर्न मनी इज स्टक इन द बैंक, डिपॉजिटेड मनी। एंड बीइंग अ लोन टेकर, आई टुक द लोन, आई डिफॉल्टेड। अब उसमें हुआ क्या, जस्ट इमेजिन दिस थिंग हैपनिंग थ्रू आउट द कंट्री। उसमें द बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड, द फर्स्ट बैंक टू बी कोलैप्स वाज लेमैन्स ब्रदर क्रैश, इट वाज अ बिग क्रैश, पूरा बैंक कोलैप्स हो गया। उनके पास पैसे ही नहीं थे लोगों को वापस करने के लिए। जस्ट इमेजिन, आप लोग, यू अर्न योर मनी, राइट? यू अर्न योर मनी डे टू डे बेसिस, और आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, हम सब अपने पैसे बैंक में रखते हैं। जस्ट इमेजिन, बैंक आपके पैसे वापिस ही ना कर पाए, बैंक बोले मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, योर मनी इज गॉन समवेयर एल्स, लाइक मिस्टर विजय माल्या और लाइक नीरव मोदी, उन्होंने पैसे ले लिए, चले गए हो। अब क्या करें? अब उनको तो आप पकड़ नहीं सकते हो, योर मनी स्टक, गाइस। So this is something happened in 2008 crisis. Banking system collapsed, real estate collapsed. जो मैंने लोन में घर लिया था, it collapsed. अब मेरे पास ईएमआई के पैसे नहीं थे, एंड उसको मैं कोलेटरल बेच नहीं सकता था क्योंकि बायर्स नहीं थे। लोगों की जॉब चली गई, द एम्प्लॉयमेंट सिस्टम कोलैप्स्ड, लोगों के पैसे फंस गए, डिपॉजिटर्स मनी वो भी कोलैप्स। अब बैंक्स ने जब लोन दिया था आगे, राइट, मुझे, तो उस लोन के अगेंस्ट एसेट शो करके बैंक्स ने बॉन्ड्स इशू किए थे, और बॉन्ड से और पैसा उठाया था। मींस एक लोन के अगेंस्ट उन्होंने 2 बार लोन दिया था। तो अगर मैं, यू वर द डिपॉजिटर्स, यू गेव 100 रुपी इन द बैंक एज अ डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट, तो बैंक ने उस 100 रुपी के ऊपर 400 रुपी लोन दिया था। इट वॉज अ बिग कोलैप्स। तो गाइस, द एंटायर इकोनॉमी कोलैप्स्ड, many sectors collapsed. It was called as 2008 crisis. एंड उस टाइम में दुनिया को पहली बार ऐसा लगा कि यूएसए इज आल्सो, इट इज, इट कैन कोलैप्स, इट्स नॉट इनविंसिबल, इवन डॉलर्स कैन कोलैप्स। एंड 2008 के आसपास ही लोगों को ये कंसेप्ट आया कि बैंकिंग सिस्टम शुड बी मोर रेजिलिएंट, एंड बैंकिंग सिस्टम का कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सिस्टम जहां पे बैंकिंग सिस्टम को, अगर कोलैप्स भी हो जाए, सो वी कैन सर्वाइव। एंड 2008 में the Bitcoin concept came. Digital currency concept evolved in 2008 only. That is why I gave you this story. कि कल को अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो भी जाता है, even then the economy and the transactions can take place, and that too time pass वाला नहीं, that too not for the sake of just survival, in a very good and very resilient way. And digital currency Bitcoin concept was, it came to existence at that point of time, right? I hope this is clear to everybody. It means not only dollar is the biggest currency in the world and most trustworthy currency in the world. Even if that can collapse, तो अब इंडिया में पूछ लेते हैं कि क्या इंडियन रूपी कैन आल्सो कोलैप्स? इज इंडियन रूपी सेफ? Let me give you a few examples, recent examples, guys. See, first of all, whatever being taught in the class should be taken as for educational purposes. These all are stories, real life stories, but it should not be considered as, कि आपका faith banking system से कम हो. Our banking system is very good, but yes, you should be knowing all these facts. So, is Indian rupee safe or invincible?
See guys, the best example was recent example, demonetization. You were holding 500 rupee note. All of a sudden, Prime Minister came, Modi ji came and भाइयों और बहनों 500 रुपए का नोट will not be a legal tender from tomorrow. Means जो 500 रुपए आपके पास थे, for example, this is 500 rupee note, it's not worth anything. It's not worth anything. It's just a piece of paper now. It means rupee तो कभी भी collapse हो सकता है. It's just in the hands of government, right? I hope you are getting the point. It means our currency is still is in the hands of government. The rupee collapse हो सकता है. One more thing, one more best example that I can give you. Yes Bank. Yes Bank case study. Everyone from the finance background, banking background, they should be knowing this thing, guys. हम सब ने बहुत मेहनत की. मैं आप हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं. हमने पैसा कमाया. यस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया. वहां पे अपने पैसे रख दिए एज डिपॉजिट्स. हमें क्या पता था कि यस बैंक के जो ऑनर्स हैं, यस बैंक के जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम है एंड ऑल दोस पीपल, उन्होंने हमारा पैसा किसी रिस्की एसेट्स में लगा दिया. दे थॉट कि हम यस बैंक को बहुत बड़े तरीके से ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे. बट हमेशा रिस्की एसेट्स में पैसा लगाने से रिस्क तो था. तो हम सबके पैसे उन्होंने आगे किसी रिस्की एसेट्स में लगा दिए. वो पैसे डूब गया. द मनी गॉट वेस्टेड. नो, इट वाज अ बिग फेलियर. ये बात उन्होंने किसी को पता लगने नहीं दी. नो, nobody got to know these things. Now what happened with this time, कहीं ना कहीं से सीक्रेट्स तो निकल जाते हैं. सो ये बात बाहर आ गई और लोगों में पैनिक मच गया. गाइस, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है ना, पूरे वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम एक ही फिलॉसफी में बिलीव करता है, that banks believe all the depositors will not come together withdrawing their money. कि जिन लोगों ने भी बैंक के पास पैसा दिया है आज, वो सारे के सारे इकट्ठे कभी नहीं आएंगे पैसा मांगने. ऐसा कभी होता भी नहीं. अगर ऐसा आज हो जाए तो इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. बिकॉज हम जब बैंक में पैसा रख देते हैं हम भूल जाते हैं. वी एंजॉय आवर लाइफ. इतना पैसा करेंगे क्या. बट जस्ट इमेजिन गाइस, आज इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन सारे बैंक्स में पहुंच जाए कि हमारा पैसा डिपॉजिट वापस करो. इवन आज ही इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी अफवाह भी ना फैले. लेकिन उस टाइम में यस बैंक के टाइम में ये अफवाह फैल गई एंड ऑल द डिपॉजिटर्स दे केम आस्किंग एंड डिमांडिंग द मनी बैक. नाउ यस बैंक वाज नॉट हैविंग द मनी. एंड सोचो, हम सब लोगों ने अपना पैसा वहां 10 साल, 5 साल, 20 साल इतनी मेहनत करके वहां रखा था. दैट मनी गॉट स्टक. हमारा ही पैसा हम ही नहीं निकाल सकते. एंड बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड. यस बैंक कोलैप्स्ड. अब क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर बैंक, यस बैंक तो कोलैप्स हो गया, नो इश्यूज. पैसे का क्या. नो, हमारा पैसा कहाँ जाएगा. इट्स गॉन गाइस. इट्स योर मनी एंड इवन योर मनी कैन नो it can go wasted any point of time depending upon the top management of the bank. अगर top management गलत फैसला ले ले तो आम इंसान ही भुगतेगा. Your money got stuck. And that is why even in India or all the banking systems of the world, you can't 100% rely. Yes, we are following Basel norms. Our banking system is very robust. These are very good things. But I am giving you a story कि ऐसा हो सकता है. And this led to evolution of digital currency, bitcoins, digital transactions. इसी की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन to prevent those bad days, those rainy days that can happen in future and that happened in the past as well. All right. Now, how the banking system of the world works, right? गवर्नमेंट सबको देख रही है. गवर्नमेंट के अंडर आता है सेंट्रल बैंक. तो इन यूएस इट इज फेडरल बैंक. इन इंडिया इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. और आरबीआई के नीचे सारे बैंक्स होते हैं. देयर आर सो मेनी बैंक्स, राइट. अब वो सारे के सारे बैंक्स में हम डे टू डे बेसिस में ट्रांजेक्शन करते हैं. आई एम सेंडिंग मनी टू यू, यू आर सेंडिंग मनी टू योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज सेंडिंग मनी टू हिज फादर, लाइक दैट. Daily transactions are going on, right? So these transactions are either going on RTGS, NEFT, IMPS, सब ट्रांजेक्शन चल रही है. तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू सारे बैंक्स के ऊपर नजर रखती है, राइट. तो मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ तो बैंक देख रहा है मेरे पैसे को, राइट. उसको आरबीआई देख रहा है, उसको गवर्नमेंट देख रही है, तो सबके ऊपर नजर है. So everyone, all the transactions which is happening in the country right now,
गवर्नमेंट कैन सी दैट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ सडन आई सेंड यू 10 करोड़ रुपए, मेरे पास था नहीं लेकिन मैंने भेज दिया कैसे ना कैसे करके. एकदम से मेरे बैंक में रेड लाइट जल जाएगी कि हाँ इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है. वो अपने हेडक्वार्टर को बताएगा, हेडक्वार्टर आरबीआई को बताएगा, आरबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा, मेरे घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी. दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स. मींस गवर्नमेंट इज ऑलवेज वॉचिंग अस, राइट, ऑलवेज वॉचिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स. तो आरटीजीएस हो चाहे हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, सबको देख रही है गवर्नमेंट. स्विफ्ट होता है इंटरनेशनल ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज यहाँ से पैसा अफ्रीका भेजना है, अफ्रीका के भी किसी गांव में भेजना है, तो ये सब काम नहीं करेगा, वहां पे स्विफ्ट काम करेगा. लेकिन स्विफ्ट को भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देख रही है. सो समवन इज वॉचिंग ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स. बट अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अब एक ऐसी यू नो टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे अगर मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा. गवर्नमेंट विल नेवर गेट टू नो. दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एनक्रिप्टेड सिस्टम, राइट. इसे बोलते हैं बिटकॉइंस. वी आर मूविंग दैट डायरेक्शन, जहां गवर्नमेंट भी आपको देख ना पाए. फिर गवर्नमेंट कांट सी यू व्हाट इज हैपनिंग. मैंने पैसा आपको भेजा, बस किसी को पता नहीं लगा. इट्स जस्ट यू एंड मी. नो वन एल्स एवर गेट टू नो. किसी को पता ही नहीं लगेगा. That is why it is decentralized. कोई ऊपर से बैठा नहीं है centralized, right? And it is encrypted. Encrypted जैसे हमारे WhatsApp के messages encrypted होते हैं, it is also encrypted, guys. No one will ever get to know. So हमें यहाँ पे अभी दो तीन चीजें धीरे धीरे पता लगना शुरू हुई हैं. Why Bitcoin is so you know buzz word these days. सब इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स या इसको बैन क्यों करना चाह रही है. बिकॉज गाइज, यस, दिस कैन लीड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज. कि मैं आपको चुपके से पैसा भेज दूं, इट कैन बी मिसयूज्ड एज वेल, राइट. एंड अगर ऊपर से कोई देखने के लिए बैठा नहीं है, तो इट कैन बी यूज्ड इन मेनी अदर इलीगल एक्टिविटीज एज वेल, दैट वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस, राइट. बिकॉज इसमें पंप एंड डंप बहुत होता है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग. सो अभी तक हमने हमने ये देखा कि इवन डॉलर कैन फॉल, even rupee can fall. We saw many instances when rupee and dollar both had, the conditions कि वो दोनों fall हुए हैं. They had bad times, right? So we discussed few financial events. Now let's see the evolution of the currency. So it was the barter system. Barter system is very simple, guys. मैं आपको चावल दूंगा, बदले में आप मुझे wheat दे दो. मैं आपको कॉफी दूंगा, बदले में आप मुझे टी दे दो. So we are exchanging. But what if, guys, if I am also having rice, you are also having rice? That will be difficult. So we need to find a perfect match. So इसको इवॉल्व करके हम नेक्स्ट करेंसी में गए. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी व्हीट एंड राइस एवरीवेयर एंड अदर कमोडिटीज व्हिच वर एक्सचेंज. तो मैं इतना चावल की बोरी उठा के 10 किलोमीटर दूर व्हीट लेने जाऊंगा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. देन केम द मेटल करेंसी. मेटल करेंसी वाज सिंपल, मींस रेयर मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, थोड़े से गोल्ड के सिक्के हों, मैं आपको दूं, बदले में आप मुझे व्हीट दे दो, राइस दे दो. इट वाज इजी, राइट. But again, carrying gold and storing gold and hiding gold was very difficult, though it was a precious metal, right? So हम इससे भी इवॉल्व हुए. अब इसके बाद आया गोल्ड स्मिथ सिस्टम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, गाइस, इसको समझ लेना. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग है. इसी के ऊपर आगे फिएट करेंसी आएगी, तभी हम बिटकॉइन में पहुंचेंगे, राइट. सो दिस इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन. अब हुआ क्या? लेट्स इज अ गोल्ड पेन. फॉर एग्जाम्पल, ये गोल्ड का पेन है. और आपने ये पेन, आई एम अ गोल्ड स्मिथ इन द एरिया, मैं एरिया में गोल्ड स्मिथ हूँ, राइट. मेरे पास बहुत गोल्ड है. आपने ये पेन मुझे दिया, बदले में आई गेव यू वन नोट, राइट. सो इस नोट की इक्वलेंस क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? दिस नोट इज इक्वल टू वन गोल्ड पेन. तो मैंने आपको ये दे दिया. यू कैन यूज दिस रिसिप्ट एनीवेयर. नाउ दिस रिसिप्ट विल एक्ट लाइक अ करेंसी. नाउ अगर आपके पास ऐसे ऐसे दो पेन थे, इफ यू हैड टू पेन्स लाइक दिस, तो मैंने आपको एक और दो रिसिप्ट दे दी. तो इसमें क्या है? बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लेवल पे चल रहा है. टू पेन्स, टू रिसिप्ट्स ऑफ द करेंसी, राइट. नाउ यू नीड टू कैरी द गोल्ड एवरीवेयर. आपको इस गोल्ड को उठा के रखने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन यूज दीज रिसिप्ट्स. आप इस रिसिप्ट से सामान खरीद सकते हो, राइट, बिकॉज दीज आर जस्ट इक्वल टू गोल्ड. सबको क्या भरोसा है इसमें कि हाँ, इनके पास गोल्ड होगा तभी इनके पास ये रिसिप्ट आई है. और अगर आपको आपका गोल्ड वापिस चाहिए, आप रिसिप्ट दे लो, गोल्ड ले लो. सो इट्स वेरी सिंपल. नाउ द गोल्डस्मिथ वाज वेरी स्मार्ट. मैं गोल्डस्मिथ था, ही वाज वेरी स्मार्ट. मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास जितना भी गोल्ड है, किसी को क्या पता, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है.
तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि आपने मुझे दिए 2 गोल्ड के पेन, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इस 2 गोल्ड के पेन के अगेंस्ट 2 रिसिप्ट्स मैं आपको दे देता हूँ, 2 रिसिप्ट्स मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ, वो ऐसे ही किसी को दे देता हूँ. Why not? It can happen, right? So people were giving me, earlier what was happening, gold, number of pens were equal to number of receipts. लेकिन I played a very smart game. I produced more number of receipts. अब मैंने बहुत सारी receipts बना ली. I thought मैं receipts बांटता जाऊंगा, क्योंकि why, what is the philosophy behind it? सारे के सारे लोग इकट्ठे तो वापस आने वाले नहीं है मुझसे पैसा मांगने. No one, not everyone is going to come at the same time asking for the receipts. So this is called as gold deposits, goldsmith money. So people were using the same concept. The same concept was used by the government, goldsmith money, that government used to buy gold, and against that, against those gold, they used to print currency. It was proportionate level. थोड़ा सा फ्रैक्शनल होना शुरू हो गया था, फ्रैक्शनल करेंसी वाज कमिंग, कि हम लोग अब 2 गोल्ड के पेन रख रहे थे तो उसके अगेंस्ट 4 करेंसी प्रिंट कर देते थे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है इतना. लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, यार कितना गोल्ड खरीदेंगे, इतना सारा तो स्टोर करने का भी रहेगा, खरीदने की भी प्रॉब्लम रहेगी. तो गवर्नमेंट रिमूव्ड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ गोल्ड, ये प्रोसेस ही हटा दिया गोल्ड वाला. देन केम द प्रोमिसरी नोट्स और द फिएट करेंसी. अब गवर्नमेंट ने बोला, हम हमारी मर्जी, हम जितना मर्जी प्रिंट करें, इट्स आर आर विश, राइट, बट यू नीड टू ट्रस्ट अस. नाउ fiat currency, it came, it is the trust currency. It is a legal tender. Why legal tender? Because government is promising you, now government is promising you that this rupee note is 500 rupee, because we are promising you, you have to trust us. So it is just moving on the basis of trust. But guys, ट्रस्ट वाली बात तो मैंने आपको बता दी. इवन रूपी कैन फॉल, राइट, एंड इवन डॉलर कैन फॉल. डू यू शुड यू रियली ट्रस्ट द गवर्नमेंट? एब्सोल्युटली ट्रस्ट तो है, अभी सारी दुनिया में ट्रस्ट बरकरार है, बट इन पाकिस्तान इट्स नॉट लाइक दैट. करेंसी में ट्रस्ट खत्म हो गया है, राइट. इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. सेम हैपेंड इन श्रीलंका. जस्ट recent examples I'm giving you guys. The same happened in Sri Lanka. Same happened in Zimbabwe. Same happened in Argentina when inflation rate went so high कि currency, fiat currency, it's just a piece of paper. You can't buy anything from this. तो at the end, sir, अब क्या उपाय बचा? अगर आप बोल रहे हो करेंसी पे भी भरोसा मत करो, what should we do, right? तो अभी सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट है, the most trustable, item right now is gold. अगर आपके पास गोल्ड होगा कभी भी, when in your life, if you have gold coins, anywhere around in future, गोल्ड से आप उतना सामान खरीद सकते हो जितने का गोल्ड है. गोल्ड is a metal which can't be made. It is God made metal. That's why it is called as God's metal, right? उसको बनाया इंसान नहीं बना सकता, और जमीन में जितना है उतना ही है. अभी तक तो बना नहीं पाया, राइट. सो गोल्ड इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी कमोडिटी राइट नाउ. तो आपको थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए. डॉलर बहुत ट्रस्टवर्दी है अभी तक, तो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, राइट. नाउ थर्ड थिंग, विद दिस कंसेप्ट ओनली, ये सब चीजें फेल हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, राइट. वी मूव्ड टुवर्ड्स बिटकॉइन, राइट. इससे पहले डिजिटल मनी में आते हैं, जो हम जी पे करते हैं, गूगल पे, पेटीएम, यूजिंग द यूपीआई. बट गाइस, this is the movement of money, right? But in the digital format, central bank and the governments are always keeping an eye on this, right? ये इसी का ही पार्ट है, बट इसमें रियल करेंसी नहीं है, फिजिकल करेंसी नहीं है, इट्स नॉट टेंजिबल, बट द मूवमेंट ऑफ मनी इज जस्ट द सेम वे. देन केम द बिटकॉइन concept. It is again digital money concept only, but a new concept came, that is Bitcoin. ये सब fiat currency, ये सब side, there's no need. Now we have moved towards Bitcoin, क्योंकि ये सब फेल हो सकता है, राइट. दिस इज ऑल हिस्ट्री, दिस इज न्यू, एंड दिस इज द फ्यूचर गाइस, राइट. लेट्स सी हाउ बिटकॉइन इवॉल्व. अब हम जा रहे हैं कोर कंसेप्ट ऑफ बिटकॉइन. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट. अब आपको ये स्टोरी जितनी भी मैंने बताई है, इस स्टोरी का यूज आएगा,
बिकॉज एक एक ड्रॉबैक को हम यहाँ पे ओवरकम करने वाले हैं बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से। जो भी हमने ड्रॉबैक्स पढ़े, बैंकिंग सिस्टम कैन कोलैप्स, गवर्नमेंट कैन सी यू एनीवेयर, सर्वर्स कैन कोलैप्स, ये जितना भी है इस सब के सब we are going to learn and we are going to see how it can be so revolutionary, right? 2008 में पहली बार एक पेपर पब्लिश हुआ, right? So this was the person who published this paper. Now ऐसा कई बार बोला जाता है कि this was not the real name, but this guy was from the technology background, maybe a computer engineer. 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च हुआ, राइट? लेट मी शो यू व्हाट इज बिटकॉइन नेटवर्क। सो गाइस दिस इज बिटकॉइन नेटवर्क। उन्होंने पूरी अपनी वेबसाइट इशू की एंड दिस वाज द टाइम व्हेन बिटकॉइन स्टार्टेड, राइट? पहली बार लोगों ने बिटकॉइन में थोड़ी ट्रांजैक्शन की 2010 में, मींस तब 10,000 बिटकॉइंस का एक पिज्जा आता था। वी जस्ट स्टार्टेड, राइट? 2013 में गाइस बिटकॉइन $10,000 से ऊपर चला गया। 2017 में बिटकॉइन $20,000 को भी क्रॉस कर गया ना। ये दो तीन चीजें हमें समझने पड़ेंगी, ये दो तीन चीजें आगे। गाइस दिस इज अ स्टोरी गोइंग ऑन, कोई भी चीज इसमें से मिस हुई यू विल मिस द एंटायर कंसेप्ट, राइट? टुडे द बिटकॉइन, वन बिटकॉइन इज कॉस्टिंग 96,000 यूएसडी। 96,000, जस्ट इमेजिन गाइस, 1,000 से 96,000 टुडे, आज 2020-25 फरवरी में, and it is costing in INR 8 crore rupee. In INR, one Bitcoin is costing. ये काम कैसे कर रहा है? This all is working under just one concept. That concept is demand and supply. So demand and supply को सर हम लोग इसमें रेगुलेट कर सकते हैं क्या? तो supply is fixed. Bitcoin में supply बिल्कुल fixed है. That we are going to see towards the end of the slides कि कैसे supply fixed होने से हमें benefit मिल रहा है। पर यहाँ पे डिमांड को अल्टर किया जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि बिटकॉइन में जब ऊपर कोई है नहीं ना देखने के लिए, when there is no watchdog सेंट्रल एजेंसी, तो यहाँ पे नेगेटिव चीजें यूज की जा सकती हैं, नेगेटिव स्ट्रेटजीज यूज की जा सकती हैं। दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट नाउ। 2020 में एलन मस्क ने अपने ट्विटर में ये अनाउंस किया कि फॉर टेस्ला वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइंस। अब इस वाली स्ट्रेटजी को बोलते हैं पंप एंड डंप। जब कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी कुछ भी बोल के किसी शेयर प्राइस को ऊपर ले आए, अरशद वारसी भी इसमें फंसे हुए थे बहुत टाइम पहले। अगर मैं आपको बोलूं कि गाइस ये शेयर बहुत अच्छा है, इसको खरीद लो, आप सब मेरे ऊपर भरोसा रखते हो बिकॉज यू आर आई एम टीचर, राइट? यू विल बाय। वो प्राइस ऊपर तो चला गया, आपने कहा साढ़े सर ने 200 में बोला था, 200 में पहुंच गया, 100 to 200, यू मेड प्रॉफिट। लेकिन मैं अपना पैसा 10% ही लगाया था उसमें, आई जस्ट इन्वेस्टेड 10%, जस्ट कि थोड़ा सा ऊपर जाए। और आपने भी लगाया तो ऊपर वो गया। 90% पैसा मैंने तब के लिए रखा था कि जब 200 से नीचे क्रैश करेगा आई विल शॉर्ट सेल इट। दिस इज व्हाट ही डिड। इट इज कॉल्ड एज पंप एंड डंप। इट मींस बिटकॉइन में थोड़ा फ्रॉड हो सकता है क्या सर? हाँ। सर थोड़ा उसमें पंप एंड डंप चलता है क्या? हाँ। सो दिस इज अ नेगेटिव थिंग। 2021 में एलन मस्क ने एक और चीज किया, मतलब एक और अनाउंसमेंट किया ट्विटर में, that Bitcoin consumes a lot of energy. Energy consumption बहुत ज्यादा है। This is something you're going to get to know. You will get to know this thing कि energy consumption क्यों ज्यादा है in the coming slides, right? तो इसका मतलब है Bitcoin crash हो गया। तो he made Bitcoin to go up and crash। मतलब he made money upward and downward। upward क्यों? इन्होंने अपना पैसा लगाया, पैसा बनाया। ऊपर जब गया तो इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। तो he made money both the ways, but it was a wrong approach. If I tell you, it is called as pump and dump, and it is not legal in Indian stock market. Indian stock market में ये चीज लीगल नहीं है। देन 2022 में गाइस एलन मस्क ने डोज कॉइन को सपोर्ट किया, वो ऊपर चला गया। इट मींस इट कैन बी मैनिपुलेटेड द डिमांड ऑफ द बिटकॉइन। इट वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन डिमांड को हम लोग अल्टर कर सकते हैं, वी कैन अल्टर द डिमांड यूजिंग सम नेगेटिव स्ट्रेटजीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Now, guys, we are moving towards the conceptual thing, right? We are moving slowly with stories, but अब हम धीरे धीरे इसकी टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। So Bitcoin is a digital currency, right? It means it is a combination of finance and technology.
मतलब इसमें थोड़ा दिमाग फाइनेंस वालों का भी है, थोड़ा टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स का भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। जैसे यूपीआई काम कर रहा है, आपने कभी सोचा यूपीआई काम कैसे कर रहा है? मीन्स देयर इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड देयर आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, सो इट इज, you know, it is a combination of fintech, finance and technology. It is also a combination of fintech. And guys, it is a good future if I tell you. आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो लर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इट इज, इट्स गोइंग टू हैव अ गुड फ्यूचर। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इवन दो यू ऑलरेडी हैव नॉलेज ऑफ फाइनेंस, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखो, कोडिंग सीखो, उसमें यू विल हैव अ गुड फॉर्च्यून्स इन फ्यूचर। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सबसे पहले फाइनेंस समझते हैं बिटकॉइन का। फाइनेंस में क्या होगा कि दो लोग हुए, ट्रांजैक्शन हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, वन विल बी बायर, अनदर विल बी सेलर। तो कोई तो बेच रहा है और कोई तो खरीद रहा है। और इट कुड बी लाइक दिस, समवन वुड बी सेंडर, समवन वुड बी रिसीवर। मींस किसी ने बेचा तो किसी को पैसा आया, किसी को बिटकॉइन मिला, सो इट्स अ ट्रांजैक्शन। नो, बायर विल गेट द बिटकॉइन, सेलर विल गेट द मनी राइट इन द वॉलेट। बट ये ट्रांजैक्शन तो हम दुकान में भी करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटकॉइन, राइट? सो इसमें क्या है, इसमें आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन अ ब्लॉक इज क्रिएटेड एंड दैट ब्लॉक इज सील्ड बाय कोड्स। तिजोरी की तरह इसको बंद कर देते हैं। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। सर ये होता कैसे है? फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी पार्ट। सो फाइनेंस की सिंपल ट्रांजैक्शन को जो हम दुकान में करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, और जो डे टू डे बेसिस पे हम करते हैं, उसको अगर टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दे विद कंप्यूटर, यूज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट? सो द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या रहता है, राइट? सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी, बायर ने कुछ खरीद लिया सेलर से, राइट? उस ट्रांजैक्शन को उसके बाद सील कर देते हैं। दैट्स इट। बाहर से कोई इंसान ना उसको देख सकता है, ना उसको कोई इंसान अनलॉक कर सकता है, बिकॉज जो सील होता है वो सील होता है बाय कोड्स के साथ, राइट? तो ये हो गया सील। तो सर इसमें पावर सप्लाई का क्या यूज है? गाइज, इसमें हम और डीप जाने वाले हैं, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राइट नाउ। अब ये सील हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल इट्स मी एंड यू, इट कुड बी whosoever sitting on that side of the computer। मैं और आप हैं, मैंने आपसे कुछ खरीदा, राइट? इसमें ना मेरा नाम आएगा ना आपका नाम आएगा। इट इज कोड 1 2 3 4 एंड देयर विल बी कोड, 5 6 7 8 9। सो nobody knows कि किसने किसको पैसा भेजा, इट्स जस्ट मैथमेटिकल कोड। और उसके बाद क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन सील हो गई, इट इज सील्ड। ठीक है? अब ये हो गया स्टेप नंबर वन ट्रांजैक्शन का। अब स्टेप नंबर टू आएगा। जब हम पैसा भेजते थे बैंकिंग सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने आपको पैसा भेजा, सबसे पहले क्या होता था, हमारा बैंक अकाउंट वाज रिक्वायर्ड, राइट? अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पैसा भेजा, दे आर कीज रिक्वायर्ड। बैंक अकाउंट को यहाँ पे कीज का कंसेप्ट किया, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। पब्लिक की और प्राइवेट की होता है मेरा नंबर, जो मेरी ट्रांजैक्शन का नंबर था, ये मेरा बिटकॉइन था, मेरी ट्रांजैक्शन का नंबर था। सो आई हैव अ की, उसी से मैं इसको खोल सकता हूँ, और वो आपको मैं दूंगा, तभी आपको मैं वो बेच सकता हूँ। सो दिस इज वन कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक और पार्टी है, हमेशा ट्रांजैक्शन में इट वाज यूज्ड टू बी थ्री पार्टी सिस्टम, एक बायर, एक सेलर, और इस डील को वैलिडेट करने वाला थर्ड इंसान। क्योंकि दो लोग गलत डील भी तो कर सकते हैं। हमारे केस में क्या होता है, बैंक में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, और जो बैंक होता है या आरबीआई होता है या जो गवर्नमेंट होती है, दैट एक्ट्स एज अ वैलिडेटर, कि हाँ, प्रणय ने आपको पैसे भेजे हैं। उसको वैलिडेट तो कोई करेगा, राइट? स्टॉक्स में भी ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट में भी ट्रांजैक्शन होती है। व्हेन आई बाय द शेयर्स, सो दे आर क्लियरिंग एजेंसीज, वो देखती हैं, हाँ, बायर ने भेजे शेयर्स, बायर ने पैसे भेज दिए सेलर को, हाँ भेज दिए, सेलर ने स्टॉक्स भेज दिए, हाँ भेज दिए, हाँ, हैंड्स प्रूफ, सील, और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इसका मतलब कोई ऊपर से देख रहा होता है वहां पे। यहाँ पे जो देखने वाला काम है, जो वैलिडेट करने वाला काम है, वो करते हैं माइनर्स। अब ये माइनर्स क्या है? These are random people sitting anywhere, right, in the world, लॉटरी सिस्टम में। अब मैं धीरे धीरे आएंगे, बस आपने बस ये समझना है, अभी आप समझो इसको, हम माइनिंग एक पूरा कंसेप्ट करने वाले हैं इसमें, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट।
अगर मैं शेयर खरीदता हूं, देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। बायर ने पैसे दिए सेलर को और सेलर ने शेयर्स भेजे। इसको वैलिडेट करने के लिए है एनएसडीएल, वो उसको सेव करती है लेजर को। उसके बाद नेशनल नो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो उसको क्लियर करेगी एंड सेबी उन सबको देख रही है, राइट। तो वैलिडेट करने वाले हैं, यहाँ पे भी वैलिडेट करने वाले हैं, बट यहाँ पे वैलिडेट करने वाले रैंडम लोग हैं, मेरी तरह और आपकी तरह, राइट। मतलब इट वॉज मी एंड यू एंड वन पर्सन ऑल ऑफ सडन चोजन, सड़क से पकड़ के किसी को भी चूज कर लिया, आओ हमारी ट्रांजेक्शन वैलिडेट करो। अब जो सड़क से पकड़ के जिसने इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट किया है गाइस, दैट पर्सन, राइट, उसको कुछ मेरा पर्सनल पता नहीं लगेगा कि प्रणय ने खरीदा या आपने खरीदा, हमारा नाम इज एक्स वाई जेड। तो इसमें आइडेंटिटी कभी रिवील होती ही नहीं है, बिकॉज सब रैंडम हो रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील होती थी, राइट। अब यहाँ पे ये सब सील्ड है कोड के साथ। और जो तीसरा इंसान है, उस इंसान को उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक मैथमेटिकल कोड ब्रेक करना पड़ेगा, पजल। और वो पजल इंसान के दिमाग से नहीं होती है, उसको कंप्यूटर में बैठ के वो कोड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ही वो वैलिडेट कर पाएगा। गाइज अभी मैं सिर्फ एक आउटलाइन दे रहा हूँ, वी आर गोइंग टू डिग डीप इनटू दिस। बस आप एक आउटलाइन लेके चलना आगे इसको। तो होता क्या है, हम माइनर्स को बहुत डीप में डिटेल करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, बट टिल नाउ मैं और आप ट्रांजेक्शन होगी, उसको सील लगा दिया पैकेट को, दिस इज सील्ड नाउ। सड़क से किसी भी इंसान को पकड़ा, उसको बोला भाई इसको आपको वो करना है, यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू वैलिडेट इट। तो सबसे पहले उस इंसान को इस पैकेट को खोलना पड़ेगा। तो इस पैकेट को खोलने के लिए उसको एक कोड डालना पड़ेगा इसमें, वही कोड जो मेरे और आपके बीच में था, लेकिन हम नहीं जानते उसको, राइट। तो उसको कोड तोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द कोड। उस कोड को ब्रेक करने के लिए उसको बहुत बड़े कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, प्रोसेस हाई प्रोसेसिंग पावर। मतलब एक कंप्यूटर नहीं, 50 100 200 कंप्यूटर्स जो पास पूरा दिमाग लगा के उस कोड को तोड़ेंगे, ताकि ये पैकेट फिर से खुल जाए और इसमें एक टिक लगा दे और हाँ वैलिडेटेड है, और वो पैकेट फिर बंद हो जाएगा, लेकिन अब हमेशा के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तीन लोग, मी, यू एंड थर्ड पर्सन, बट थर्ड पर्सन कांट सी द ट्रांजेक्शन, उसे नहीं पता मेरी ट्रांजेक्शन है आपकी ट्रांजेक्शन है। उसे कोड तोड़ के पता लगेगा, उसमें भी नाम नहीं लिखा रहेगा, कोड को बस वो देखेगा हाँ ट्रांजेक्शन होगी एंड दैट इज डन। तो उस कंप्यूटर चलाने के लिए उस इंसान को बहुत हाई पावर जीपीयू की जरूरत होती है। दैट इज वाई ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर जनरेटेड। और वो जो हमने सड़क से इंसान उठाया था, उसका फायदा क्या था, उसको बदले में थोड़ा हम रिवॉर्ड दे देंगे, थोड़े बिटकॉइन दे दो यार, थोड़ा टोकन अमाउंट दे दो, खुश हो जाएगा वो भी। So this is how the entire process works in very simple language. अब हम इस सारे प्रोसेस में एक एक करके डीप में जाएंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सिंपल ट्रांजैक्शन जो बैंक में, बैंक की नजर में होती है, बैंक निगरानी रखता है एंड बैंक वैलिडेट्स इट। यहाँ पे एक तीसरे इंसान की नजर में होगी, लेकिन वो तीसरा इंसान रैंडम होगा, ही विल बी रैंडम पर्सन। एंड उस रैंडम पर्सन को भी ऐसे भी कोई एरा गैरा नहीं आ सकता है हमारी ट्रांजेक्शन को देख सकता है, उस रैंडम पर्सन को भी ये तोड़ना पड़ेगा कोड पहले, ओनली देन ही कैन वैलिडेट इट। तो सब यहाँ पे रैंडम है, नो वन नोज क्या हो रहा है, हु इज डूइंग इट। दिस इज कॉल्ड एज, नो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मीन्स एनक्रिप्टेड, कोई नहीं देख सकता बाहर का इंसान कहाँ कैसे हुआ, किसने पैसे भेजे, बस वो वैलिडेट करके वो पैकेट बंद। दिस इज, तो पैकेट बंद वाले को बोलते हैं ब्लॉकचेन। वो ब्लॉक बन गया एक डब्बे की तरह, इट्स ब्लॉक, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। एंड द सेकंड टेक्नोलॉजी द माइनिंग टेक्नोलॉजी। माइनिंग मींस उसको खोद के निकालना पड़ेगा वो पैकेट, और उसको वैलिडेट करके फिर पैकेट बंद करके डालना पड़ेगा, दिस इज माइनिंग। एंड दिस रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। अब ये माइनिंग वैसी वाली मत सोचना कि जमीन को खोदना पड़ेगा, इट इज डन यूजिंग हाई एंड कंप्यूटर्स गाइस। ऑलराइट नाउ, सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो आती है इसमें, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी। गाइस अब हम धीरे धीरे करके एक एक टेक्नोलॉजी को डीप में पढ़ने वाले हैं। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, और आपका जो कंसेप्ट यहाँ रह गए होंगे, द कंसेप्ट्स व्हिच आर स्टिल रिमेनिंग, वो कंसेप्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली क्लियर। ऑलराइट नाउ, डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। हम पहले सिंपल एग्जांपल से करते हैं। मेरा और आपका, मैंने आपको पैसे भेजे,
You live in Madhya Pradesh, Indore. I live in Himachal, for example. I sent you money using a bank. तो बैंक में मैंने आपका अकाउंट नंबर डाला और आपको पैसे चले गए. अब वो जो लेजर है वो बैंक कहाँ मेंटेन करेगा? मुंबई के हेडक्वार्टर में. तो बैंक अपने डेटा में चढ़ा देगा. वो सर्वर कहाँ मेंटेन्ड है? दैट सर्वर इज मेंटेन्ड इन मुंबई हेडक्वार्टर. राइट. तभी आपने देखा होगा सर आज तो सर्वर ही फेल है. आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ आएगा सर्वर वाला. यू नो. तो अगर मुंबई का सर्वर फेल तो सारे इंडिया का सर्वर फेल. राइट. अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी बैंक वाली, इसको सेंट्रल बैंक भी देख सकता है. इट कुड बी यूएस फेडरल बैंक वहां पे, और यहाँ पे आरबीआई. और आरबीआई से गवर्नमेंट भी देख सकती है. मींस हमारा इंटेलिजेंस, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सारे देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस को. तभी तो घर में इनकम टैक्स का रेड का वो आ जाता है. राइट. सेम गोज. मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ रियल लाइफ सिचुएशन में कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है इन बिटकॉइन. नाउ सेम गोज विद स्टॉक मार्केट. मैंने आपसे शेयर खरीदे, आपको पैसे दे दिए. इस चीज को नेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसको अप्रूव करेगी पहले. फिर वो जो लेजर था, लेजर मतलब सबूत, वो जो पेपर होता है वो जाएगा एनएसडीएल के पास. ठीक है. या सीडीएसएल के पास कि जी इस इंसान ने ऐसे ऐसे खरीदा है और इसको अपने पास रख लो. तो लेजर गया सेंट्रलाइज्ड उसके पास, और उसके ऊपर सेबी उसको कभी भी देख सकती है. मींस गवर्नमेंट कैन आल्सो सी. बट सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी. जो अभी मैंने बताई कि एक ही जगह सारा का सारा डेटा है. यहाँ पे सारा डेटा एक ही जगह जा रहा है. बट इन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन. अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ. नाउ कमिंग टू द बिटकॉइन कंसेप्ट. यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ आपके बीच में और मेरे बीच में. राइट. दैट ट्रांजेक्शन इज डन कि Mr. Pranay sold some sold some bitcoins to Mr. B. Right? So हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ. Now this transaction is sealed now. अब ये ट्रांजेक्शन सील हो गया और इसमें कोड लग गया. कोड को यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं हम? हैश टैग. So हैश टैग इज गिवन एंड दैट हैश टैग इज अल्फा न्यूमेरिक. ये जो हैश टैग होता है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है. तो इसमें कोड्स लग गए कि आज प्रणय व्यास ने इतने इतने सेल परचेज किया एंड इट इज सील्ड नाउ विद डेट एंड टाइम. इस तारीख को ऐसा ऐसा और ये सील हो गया. राइट. अब क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप, अनोनिमस वैलिडेटर. अनोनिमस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी वैलिडेटर जो आएगा, वैलिडेटर मतलब इसको किसी थर्ड पार्टी को तो देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन सच में हुई है, पैसे वगैरह सब चले गए हैं. तो अनोनिमस वैलिडेटर विल कम and that validator will try to open this code. अब इसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं. There's so many people sitting. It's just like an IPO. ये आईपीओ की तरह होता है जब बहुत लाखों के हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं, कुछ कोई लॉटरी से नंबर लगता है. इसमें भी ऐसा होता है. इसमें क्या होता है कि there are so many miners who are sitting worldwide, not only in India, worldwide, right? बहुत सारे माइनर्स बैठे होंगे, वो सब अप्लाई कर रहे होंगे कि मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, लाइक दैट. और ना वहां पे कंप्यूटर से रैंडम लॉटरी निकलेगी. ओके, मिस्टर एक्स इज द पर्सन जिसको ये वैलिडेट करने का मौका दिया जाता है. अब एक्स को मैं नहीं जानता, ना एक्स मुझे जानता है, वो पता नहीं कौन सी कंट्री में है, ना एक्स आपको जानता है. राइट. तो इतने सारे वैलिडेटर्स क्यों बैठे हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर इतने सारे वैलिडेटर क्यों इतना टाइम वेस्ट करें? गाइज, एक बिटकॉइन कितनी कॉस्ट है? इट इज कॉस्टिंग अभी आईएनआर के हिसाब से 8 करोड़ रुपए. तो जो इंसान वैलिडेट करता है उसको अब आज की डेट में 6 बिटकॉइंस मिलते हैं. पहले मिलते थे 16, उससे पहले 21 एज ए रिवॉर्ड. तो इट्स अ गुड प्रोफेशन. मल्टीप्लाई 8 करोड़ विद 6, 34 करोड़ के आसपास. यू विल मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. प्रोफेशन है गाइस, दिस इज अ प्रोफेशन नाउ डेज. सो पीपल आर माइनर्स. उन्होंने इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे हैं सिर्फ यही काम करने के लिए. सो अ पर्सन वुड गेट अ चांस टू वैलिडेट इट. वो कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत बड़े सेंटर्स बनाए उन्होंने. जीपीयूज, दीज आर ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट कंप्यूटर्स के. वो इस कोड को, अब वो किसी को मैं जब चांस दूंगा इतने सारे लोगों में से सबको मैं एक पजल भेजूंगा सॉल्व करने को. आई विल सेंड अ पजल टू एवरीबडी. दैट इज अ वेरी हाई एंड पजल, ह्यूमन माइंड से नहीं सॉल्व होती. अब होगा क्या? इतने सारे माइनर्स में से एक इंसान सबसे फास्ट पजल सॉल्व करेगा
and he will get a chance to open this. And then he will say, okay, Mr. Pranay sent this. Mr. Pranay का नाम आएगा नहीं वहां पे, numbers होंगे. It was a deal and it was done. वो टिक लग जाएगा. And it will be closed forever. ये हमेशा के लिए बंद. अब इसको कोई नहीं खोल पाएगा. And this is the completion of the transaction. अब इस ट्रांजैक्शन की कॉपी कहां कहां जाएगी? एक ट्रांजैक्शन की कॉपी आएगी मेरे पास, मेरे प्रोसेसर में. एक ट्रांजैक्शन की कॉपी जाएगी जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया उसके पास. और एक कॉपी जितने भी लोग बिटकॉइंस रखते हैं अपने पास उन सबको जाएगी. और जिसने मेरी वैलिडेशन की उसको भी जाएगी. और जितने भी लोग बिटकॉइन के सिस्टम में हैं उन सबको ये कॉपी जाएगी. इसका मतलब है हमने एक लेजर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके पास. सो अगर मेरा सर्वर कल को डाउन हुआ तो उनका सर्वर चलेगा, उनका डाउन हुआ तो किसी और को चलेगा. सो यहाँ पे सर्वर क्रैश होने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, पहली बात. राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो कस्टोडियन और नो इंटरमीडिएटरी इन बिटवीन. यहाँ पे कोई कस्टोडियन नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऊपर से बैठ के नहीं देख रही है अच्छा प्रणय ने यहाँ पैसे भेजे, मैंने बस भेजे रैंडमली. और जो मैंने पैसे भेजे हैं उसमें भी मेरा नाम कहीं लिखा नहीं है. मीन्स आई हैव बीन गिवन अ न्यूमेरिक न्यूमेरिक नेम. मुझे 1 2 3 4 5 6 7 के नाम से जाना जाता है. So no one knows who is 1 2 3 4 5 6 7, and it will be alphanumeric number. That number would be also very long. Same goes with you. तो इट इज सो सिक्योर कि रैंडम इंसान को नहीं पता उसने किस इंसान की वैलिडेट किया और किस इंसान को पैसे भेजे. और ये सारा का सारा इट्स हैपनिंग इन मिनट्स गाइस. राइट नाउ दिस ledger will be distributed to multiple servers, and this is not a centralized server, this is a decentralized server. That is why it is called as distributor ledger technology. Right, and it is peer to peer guys. मैंने किसी को भेज दिए पैसे यहाँ से अफ्रीका. I don't need any RTGS, I don't need any SWIFT, I don't need any IMPS. भेज दिए बस, that's it. And money is delivered over there. It's a system, and it is a very secure system. तभी तो गवर्नमेंट्स आर सो मच वरीड अबाउट दिस कि अगर ऐसा रहा तो कल को तो बैंक्स का यूज ही खत्म हो जाएगा. इट कैन रिप्लेस द डैम करेंसी गाइज. दिस कैन रिप्लेस द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से. राइट, सो इन दिस द लेजर इज डिसेंट्रलाइज्ड. और जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें क्या होता था, सब सेंट्रलाइज होता था. कि मेरे बैंक के पास फिर एक ही सर्वर है मुंबई में और मुंबई का सर्वर फेल तो सारी इंडिया का फेल. यहाँ पे servers are multiple. It is cryptographic. Cryptographic, as I told you, it is encrypted, guys. यहाँ पे सबसे पहली बात नंबर्स हैं. मेरा नाम भी नंबर से रिप्रेजेंटेड है. फिर जब ये ट्रांजैक्शन होती है इट इज सील्ड पैक विद अ कोड. अगेन इट इज एनक्रिप्टेड. अब इस कोड को तोड़ने के लिए किसी माइनर को आना पड़ेगा. यू हैव टू अनलॉक इट, एंड दैट टू रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स जिनका बिजली का बिल इतना आएगा. तो गवर्नमेंट के पास तो इतना दिमाग नहीं है ये सब करने का और इतने सारे कंप्यूटर्स रखने का. एंड दिस एनक्रिप्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि इसको कोई नहीं पढ़ सकता बाहर से. नो वन कैन रीड इट. तो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, नो वन कैन ट्रेस दैट बिकॉज इट इज कंप्लीटली कोडेड. एंड वंस द डील इज लॉक्ड. जो लेजर में क्या होता है सर, यू मस्ट आस्क सर ये लेजर में क्या क्या लिखा रहेगा. लेजर फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेजर. सो लेजर में लिखा रहेगा डेट टाइम कब ये सब हुआ और अल्फा न्यूमेरिक कोड्स मिलेंगे. देयर विल बी हैशटैग्स दैट विल गिव. हम इसमें और डिटेल में जाने वाले हैं बट आई होप you got the point. What is a distributor ledger technology? Right, this technology is used in bitcoins and the cryptocurrency. Now I hope you know what is cryptocurrency, why the name crypto is given, because it is encrypted. I hope this is also clear to you. Now I hope guys you're getting the point कि कैसे ये करेंसी को रिप्लेस कर सकता है. Right, now I will give you one more example of blockchain technology so that ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए अच्छे से कि काम कैसे कर रहा है. ना सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स टेक माय स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. राइट, सो आई परचेज द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन हिमाचल प्रदेश. उसका क्या रहता है, उसका एग्रीमेंट करना पड़ेगा एक. सो अगेन देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है. मुझे पेपर ही फाड़ना पड़ेगा. सो आई डिड एन एग्रीमेंट. अब ये एग्रीमेंट स्टैंप ड्यूटी लगेगी इसमें. स्टैंप ड्यूटी का मतलब है गवर्नमेंट देख रही है इस एग्रीमेंट को. सो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस. राइट, फिर जो एग्रीमेंट होगा इसकी एक कॉपी मुझे मिल जाएगी और जो मेन कॉपी है, मेन
कॉपी है एग्रीमेंट की, गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, राइट? द लैंड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मेरे को तो बहुत मुश्किल से फोटो स्टेट कर करा के कॉपी मिलेगी कि सर हाथ जोड़ के मुझे भी एक कॉपी दे दो। सो जो एग्रीमेंट की असली कॉपी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? इट मीन्स लेजर कहाँ गया? लेजर गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो मेन लेजर है, राइट? सो स्टेट गवर्नमेंट इज सेंट्रलाइज्ड, तो मेरा लेजर सेंट्रलाइज्ड उसके पास है। अब गाइस, अब यहाँ पे उस बिल्डिंग में आग लग गई फिर, इफ दिस जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ दैट बिल्डिंग इज बर्न टू एशेस, तो मेरा तो लेजर भी जल गया ना। मींस अभी तो चलो थिंग्स आर बिकमिंग कंप्यूटराइज्ड, बट जस्ट इमेजिन अगर ये कंप्यूटराइज्ड नहीं होता तो, राइट? जस्ट इमेजिन अगर वहां पे आप, यू आर माई एनिमी फॉर एग्जाम्पल, राइट? आप वहां पे गए और पीएन को या किसी एम्प्लॉय को थोड़ी सी रिश्वत दे दी, और जो लेजर, जो कॉपी, जो लेजर वहां पड़ा है, तो उसमें प्रणय व्यास का नाम हटा के अपना नाम डाल दो। तो आप अपना नाम डाल दो, किरण ठाकुर फॉर एग्जाम्पल, यू पुट योर नेम ओवर देयर। अब मैं आम आदमी क्या कर सकता हूँ? आई कैन गो टू कोर्ट, दैट्स इट। और मुझे तो ऐसे पता ही नहीं लगेगा ऐसा कुछ हो गया, कोई आके मेरी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर जाएगा और मुझे कोर्ट के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे फ्लॉज थे गाइस। फ्लॉज क्या थे? लेजर एक ही जगह था, तो वो एक जगह में आग लग सकती है, गुम हो सकता है, राइट? एक और फ्लॉ था, उस लेजर के नाम को चेंज किया जा सकता है बिकॉज दैट इज हैंडमेड, राइट? तो अगेन इट वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग। अब इसके साथ एक और चीज है कि मुझे एक तो पता ही नहीं लगेगा कि मेरे लेजर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी है। ऑन कॉन्ट्रेरी, let's see the bitcoin transactions, how it takes place and what is the benefit of blockchain technology. मैंने आपको बिटकॉइन बेचा या बिटकॉइन दिया, तो लेजर बना, राइट? उस लेजर को अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया गया। अल्फा न्यूमेरिक कोड मींस टुडे इज द डेट, आज की डेट आई, टुडे इज द डेट मींस February 25th फॉर एग्जांपल। कोड नंबर 1, हैश टैग अल्फा न्यूमेरिक ABCD 1 2 3 4 5 6 7। फिर जो मिस्टर बी था, उन्होंने ये मिस्टर सी को खरीद बेच दिया। तो यहाँ पे प्रीवियस कोड तो रहेगा ही रहेगा, अगला कोड भी आएगा। मींस ये जो कोड था यहाँ पे, कोड नंबर 1, दैट विल आल्सो कम ओवर हियर। मींस पिछली ट्रांजैक्शन का कोड भी है और नई ट्रांजैक्शन का कोड भी आ गया, राइट? नाउ मिस्टर सी सोल्ड दिस टू मिस्टर डी, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? पिछला कोड तो रहा ही, साथ में नया कोड भी आया। इसका मतलब है पिछला कोड भी यहाँ आता है और नया कोड भी जनरेट होता है। तो गाइज, अगर हम इन्हीं तीन ट्रांजेक्शन्स को देखें तो यू कैन इजिली सी, ओके, दिस इज द सेकंड कोड, दिस इज द सेकंड कोड, दिस इज द फर्स्ट कोड, दिस इज द फर्स्ट कोड। इट मींस इट हैज द वेरिफिकेशन थिंग इन इट। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। मींस अगर यहाँ पे जैसे नाम चेंज कर दिया था, यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेंज टू डिफरेंट ब्लॉक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब मिस्टर डी ने मिस्टर ई को भेजा, राइट? तो यहाँ पे पिछला ब्लॉक, पिछला अल्फा, वो आया आपका हैशटैग, नया हैशटैग। सिमिलरली द एंटायर प्रोसेस इज डन, राइट? तो एक चीज तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है। द थिंग इज दैट कि ओवर हियर द प्रीवियस कोड आल्सो कम्स, राइट? एंड द न्यू कोड इज आल्सो जनरेटेड। तो अगर आपको कोई चेंज करना रहा इसमें, देन यू हैव टू चेंज दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। सो दिस, ऑल दीज आर वन वन ब्लॉक ईच। ये एक ब्लॉक की तरह है, तभी यहाँ पे चेन्स मैंने रखी है, नो, इट्स लाइक अ ब्लॉक गाइज। अगर एक ब्लॉक में चेंज करना पड़ा आपको, तो आपको पिछला ब्लॉक भी चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द प्रीवियस ब्लॉक एज वेल, राइट? तो जस्ट इमेजिन दिस थिंग, वंस द ब्लॉक इज जनरेटेड, ये ब्लॉक अगर बन जाता है, एक ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, राइट, इट इज इट इज सील्ड। जैसे मैंने कहा था आपको, एक ब्लॉक बन गया, उसमें हैशटैग्स आ गए, प्रीवियस हैशटैग, न्यू हैशटैग, डेट एंड टाइम, इट विल बी सील्ड। एंड सील के ऊपर एक लगा देंगे आपको मैथमेटिकल पजल, उसको तोड़ो, नहीं तोड़ सकते। नाउ इट इज जस्ट लाइक गाइज अ पीडीएफ और एक्सेल शीट में आपने काम किया होगा कई बार, आपके पास ऐसी पीडीएफ आती है, आधार कार्ड वाली पीडीएफ फॉर एग्जांपल। उसको खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है, दीज। और आप एक्सेल शीट में कई बार लॉक लगा देते हो, प्राइवेसी, तो वहां पे आप उस एक्सेल शीट को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उस पासवर्ड को ना डालो। सो नॉट एवरीवन कैन एक्सेस इट, राइट? इट इज लॉक्ड। तो हर ट्रांजेक्शन यहाँ पे लॉक्ड है गाइस, एवरी ट्रांजेक्शन इज लॉक्ड ओवर हियर, राइट? नाउ टू ब्रेक दिस थिंग यू हैव टू पुट अ कोड, एंड उस कोड को हम मैथमेटिकल पजल बोलते हैं। एंड दिस मैथमेटिकल पजल नीड्स टू बी सोल्व्ड, सॉल्व्ड।
अब ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल आई गेव यू इज द लॉक्ड और प्राइवेसी, द पीडीएफ और एक्सेल शीट विच इज हैविंग सम एक्स्ट्रा प्राइवेसी। सो इस चीज को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन कॉन्ट्रेरी यहाँ पे क्या था, दीज वर नॉट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे के सारे ऑफलाइन थे एंड दीज वर द फिजिकल थिंग्स दैट वर हैपनिंग। On contrary, this is completely, and guys, all these things are happening in 2008 and 9, हाँ, ये अभी का नहीं है, it started from 2008. It is encrypted. Encrypted means, एक तो सबसे पहले इस लॉक को खोलना is very difficult, right? It needs a mathematical puzzle to open this, and that is very difficult. तो ऐसे हर ट्रांजेक्शन को ओपन करना will be very difficult. Just give me a moment, guys. तो वैसे ही I'm so sorry, हर ब्लॉक को तोड़ना, you need to have high-end computers and high-end graphic units. So it is very much encrypted, right? No government and no central banks are involved. Transactions are going on between two people, and the third party, mining party, the miners, they are chosen randomly, right? And once the transaction is done, ये transaction जब हो जाती है, the ledger is distributed amongst the miner, amongst you and me. Means सबके graphical unit में, सबके processors में वो ledger जाएगा, सबके servers में वो ledger जाएगा. So I can access that thing from anywhere. तो इसमें सर्वर हैंग होने की कोई दिक्कत नहीं है कि सर्वर हैंग हो जाएगा, so I can't operate it. It can be operated because the data is saved in multiple servers. It's decentralized, distributed, right? तो guys just देखो यहाँ पे banks का, we are not using the banking system over here. Don't worry, I'm going to relate it with practicals as well, but I want you to first understand the concepts. So it is just like an electronic wallet, guys. तभी मैंने ये pictures ऐसे लगाई हैं, which is locked, and which is locked not by the password, which is locked by a mathematical puzzle, which is so tough, so difficult that only high-end computers can solve. And to operate those high-end computers, you need to have good knowledge, you need to have good electricity power backup. उसके लिए बिजली का बिल भी आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ द ब्लॉक्स आर मेड। सी, इस ब्लॉक में एक नंबर लिखा है, इसमें कहीं लिखा नहीं है ना नीचे कि प्रणय व्यास है, इसमें कहीं आपका नाम है? नो, दिस नथिंग इज रिटन। So each block will have such huge numbers. See, नीचे कितने सारे numbers होंगे? These are binary numbers. Similarly, बहुत सारे numbers होंगे. It will be very difficult to and decode it. इसको decode करना is very difficult. So each block is sealed by date, time and alphanumeric hashtags. ये जो मैंने पीछे बताया, इसकी तरह ये होगा. It acts like a safe. It acts like a chest. इसको तोड़ना is very difficult. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे कोई पीडीएफ भेजी और उसको आपने पासवर्ड के साथ सिक्योर कर लिया, तो आई कांट ब्रेक इट. उसको तोड़ने के लिए मुझे हाई एंड कंप्यूटर चाहिए. जस्ट इमेजिन दैट थिंग ओवर हियर. इट इज लॉक्ड विद अल्फान्यूमेरिक कोड. नो वन कैन एल्टर इट, राइट? एंड ये जो ट्रांजैक्शन हुई, इट बिकम्स अ ब्लॉक. अब आपको ये सब चीजें समझ आ गई, राइट? ईच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ डेट, टाइम, प्रीवियस ट्रांजैक्शन हैशटैग and the latest transaction hashtag. This is alphanumeric and these codes are quite huge. काफी बड़े कोड्स होते हैं, राइट? जस्ट इमेजिन गाइस, इसमें ना गलती के चांसेस भी कम है. सी, हमारे डे टू डे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार, कंप्यूटर्स की वजह से. ह्यूमन एरर होता है. सो मिस्टेक्स कैन हैपन ओवर देयर, बिकॉज वहां पे ज्यादा भी जा सकता है, किसी और के बैंक अकाउंट में भी जा सकता है. बट ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, सी, यहाँ पे यू कैन इजिली ऑडिट इट कि कहाँ पे पैसा है, सो you always have the previous hashtag. That previous hashtag will go to the next this thing as well. So it is coming as a, it is becoming like a chain, a long chain. और एक चेन दूसरे चेन के साथ लिंक्ड है, तो इसमें कोई भी बीच में चेंज करने की कोशिश करेगा ना, तो पिछला भी इफेक्ट होगा, तो पिछला इफेक्ट होगा तो उससे पीछे वाला भी इफेक्ट होगा. सो इट इज बिकमिंग लाइक अ ब्लॉक, इट इज लिंक्ड विद ईच अदर, एंड इसको तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ माइनिंग. ब्लॉकचेन, आई होप दिस इज क्लियर कि अभी तक हमने सिर्फ पैकेट बंद कर दिया है, इसको सील कर दिया है, ट्रांजैक्शन हो गई है. अब हमें वैलिडेटर्स चाहिए. अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने व्हाट वी लर्नड टिल नाउ, दैट टू पीपल, मी एंड यू, वी हैड अ ट्रांजैक्शन, राइट, इन अ पीस ऑफ पेपर. अब यहाँ इस पीस ऑफ पेपर में ना तो आपका नाम है ना मेरा नाम है, सो इट्स अल्फा न्यूमेरिक, और इसमें ट्रांजैक्शन की डेट टाइम रहेगा, एंड इट इज सील्ड. ये सील हो गया, राइट? इट इज सील्ड. नाउ अब क्या होगा?
Now comes the third part, the third step. This is called as validation. Validators how it is done, right? अब पहले एक नॉर्मल बैंक की ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसी रहती है फॉर अ बेटर क्लैरिटी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे भेजे. इट कुड बी यूजिंग आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेशनल भेजा तो स्विफ्ट का इस्तेमाल किया. बट इसमें काफी में तो टाइम भी रहता है, मीन्स 9 AM to 5 PM लाइक दैट, राइट? ये टाइम भी रहता है इसमें. ऊपर से सर्वर क्रैश होने की भी दिक्कत है, देयर आर चांसेस दैट सर्वर्स कैन क्रैश, कई बार हैंग हो जाते हैं सिस्टम, राइट? इसका एक और नुकसान ये है कि गवर्नमेंट, जो हमारा बैंक है, मैंने ट्रांजैक्शन किया फॉर एग्जांपल इन एसबीआई, राइट? आई सेंट मनी टू यू इन योर एसबीआई अकाउंट. तो मेरे बैंक का हेडक्वार्टर देख सकता है. माय ट्रांजैक्शंस कैन बी सीन बाय माय बैंक, द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सो दे कैन सी माय ट्रांजैक्शंस. कुछ गड़बड़ रही तो दे कैन सी, राइट? नाउ यहाँ पे इन दिस केस बिटकॉइन ऐसा नहीं है. इन बिटकॉइन में ये वाला कंसेप्ट है ही नहीं. देयर इज नो बैंक, देयर इज नो सेंट्रल बैंक, देयर इज नो गवर्नमेंट. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिटकॉइन भेजा, राइट? ट्रांजैक्शन इज डन एंड इट इज लॉक्ड. ये पैकेट बंद हो गया. इट इज इलेक्ट्रॉनिक पैकेट, ना फिजिकल भी नहीं है. इट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इट्स सील्ड. अब पूरी दुनिया में इतने सारे लोग बैठे हैं. दीज ऑल आर पीपल जिनका जॉब फुल टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन है वैलिडेट करना, टू वैलिडेट थिंग्स. LMNOPQRSTUVWXYZ, these all are different people sitting in different parts of world. अब ये लोग क्यों बैठे हैं? Why these people are sitting? These people are sitting to validate this transaction जो इसमें लॉक्ड है, to validate this transaction. तो सर इनका क्या फायदा? इनका फायदा ये है, जब ये वैलिडेट कर देंगे ना, दे विल गेट बिटकॉइंस इन रिवॉर्ड. जस्ट इमेजिन गाइस, आप अगर माइनर बन जाओ तो आपको एक वैलिडेशन का 8 करोड़ रुपए मिलेगा. 8 करोड़ रुपए फॉर वन डैम वैलिडेशन. नो नो, 8 करोड़ इंटू 6. So you are getting around 30 crore, more than 30 crore rupee for one single validation, guys. Just imagine. तो इनका मोटिवेशन ये है, ये इनका फुल टाइम जॉब है. ये माइनर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज माय रूम, यू कैन सी माय रूम, दिस इज माय रूम. मेरे पूरे रूम में कंप्यूटर्स हैं. जस्ट इमेजिन, मेरे रूम में बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगे. यू माइट हैव सीन, द कंप्यूटर्स which are used for video games, right? कि अब बहुत बड़े कंप्यूटर रहते हैं, फैन एंड प्रोसेसिंग पावर, जीपीयूज. So these are the people. हाँ, so these are the people. अब यहाँ पे जैसे ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, एट द टाइम दिस ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, राइट? Now these people will be sitting over here and they are applying in a lottery system कि मुझे 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 चांस मिले. सब अप्लाई कर रहे हैं. So what the Bitcoin organization will do, they will open a mathematical code. ये एक मैथमेटिकल कोड ओपन करेंगे एंड रैंडमली इसमें से किसी को चूज करेंगे. Randomly, lottery system. I don't know Mr. Z, I don't know Mr. S, who is all these people are anonymous to each other. ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तभी randomly यूज होता है ये. So amongst all Mr. X को ये चांस मिला फॉर एग्जांपल, और मिस्टर एक्स अब क्या करेंगे, इस इस ट्रांजैक्शन को ओपन करेंगे. अब इस ट्रांजैक्शन को ओपन करने के लिए एक मैथमेटिकल कोड का लॉक लगा है, मैथमेटिकल पजल. ये इंसान सॉल्व नहीं कर सकता. कांट बी सॉल्व बाय ह्यूमन ब्रेन. दैट इज व्हाई कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड. ये जितने प्रोसेसर्स हैं, ये जो फोटो लगी है, दीज आर द प्रोसेसर्स. वी नीड सो मेनी प्रोसेसर्स. इसमें बहुत हीट जनरेट होती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट? तो वो कंप्यूटर्स इस कोड को ब्रेक करेंगे और उसको खोलेंगे, इस ट्रांजेक्शन को, एंड दे विल सी एंड दे विल वैलिडेट इट. जब ये वैलिडेट हो गया तो ये ब्लॉक चेन का पार्ट बन जाएगा, इस चेन का. इट विल बिकम पार्ट ऑफ दिस चेन, एंड वंस इट्स पार्ट ऑफ दिस चेन, it's damn difficult to open it again or to break it or to enter it. It is so secure. ये पैक हो गया, it is packed now, and now the ledger will be distributed. अब ये ledger बन गया कि हाँ, मिस्टर प्रणय ने पैसे भेजे थे, मिस्टर ए ने पैसे भेजे थे, राइट? So what will happen over here now? This ledger will be distributed to A, B, and Mr. X, and all other people who already have the bitcoins. उन सबको पैसे भेज दिए जाएंगे, उन सबको लेजर भेज दिया जाएगा, ताकि कल को मेरा लेजर मुझसे गुम हो जाए तो मिस्टर बी के पास रहे, मिस्टर बी का गुम हो जाए तो ए के पास रहे, मिस्टर एक्स के पास रहे. सो एवरीवन इज स्टोरिंग द लेजर. सर्वर्स सबके पास है. दीज आर द सर्वर्स गाइस, राइट?
So these puzzles can't be solved by human brains. High-end computers are required. For these high-end computers, high electricity bill comes. Means it requires huge amount of electricity. और इन सर्वर से बहुत ज्यादा हीट निकलती, दे जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि सारी कहानी ध्यान से सुनना. यहाँ पे मिस्टर एलन मस्क ने क्या कहा था 2021 में कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. तो क्योंकि तो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, सो ही सेड कि हम नहीं इसमें ट्रेड करेंगे. सो ही क्रैश्ड द मार्केट, पंप एंड डंप. आई होप अब आपको सारी स्टोरी लिंक हो रही है. 2022 में इन्होंने डोज कॉइन को एक्सेप्ट किया. व्हाई? इन्होंने कहा कि हाँ, इसमें एनर्जी कम लग रही है. सो अगेन इट वाज अ वेरी, नो, इट वाज नॉट अ गुड स्टेटमेंट पर्सन लाइक हिम, फॉर अ पर्सन लाइक हिम, बट I hope you got the point why this energy consumption thing, was discussed in the starting of the class. Once the validation is done, guys, this ledger will be distributed toward with all the amongst all the people. That is why it is called as decentralized or distributed. सबके पास जाएगा. कोई यहाँ पे सेंटर में गवर्नमेंट नहीं बैठी है देखने के लिए. It's not centralized. It's decentralized. It is distributed, right? It is encrypted. इसको कोई नहीं पढ़ सकता. It is locked. It's just me and you. जिसकी transaction है only them. और उसमें भी numbers में है. My name is not mentioned in the transaction. Numbers are mentioned. The numbers को encrypt करना is very difficult, right? So that is why it is called as cryptocurrency. It is so cryptic. It is written in encryptions basically. So there is the problem of server crash, वो भी खत्म हो जाएगा, right? So इसमें इतने सारे servers रहते हैं और इन miners को क्या मिल रहा है? These miners are getting bitcoins in the reward. इनको बैठे बैठे bitcoins earn करने का मौका मिल रहा है. So if you ask me, sir, क्या माइनर बन जाए? Yes, you can if you have good knowledge of technology. You can. It's a good profession, guys. People are earning huge amount of money from this. Now there are other concepts in mining that is very important. You need to understand. I hope आपको अभी तक सारा concept समझ. Guys, this is very difficult to understand. लेकिन अभी तक जितना मैंने आपको बताया, I try to make it as simple as possible. I don't know इतना आपको कहीं किसी वेबसाइट में मिलेगा. You will not get it anywhere else. Now a few more concepts over here. सर, ये मिस्टर एक्स वाई जेड जितने सारे लोग थे, अगर एक्स को ही सारी वैलिडेशन का मौका मिल जाए तो एक्स तो बहुत रिच रहेगा. तो इसमें रूल है दैट नो वन विल एवर गेट मोर देन 50%. मतलब वैसे तो 50% से भी कम चांसेस मिलते हैं वैलिडेशन के. तो यहाँ पे 50% से ज्यादा कभी भी मौका नहीं मिलेगा किसी को भी करने का. सो अगेन इट्स अ गुड थिंग. मीन्स कोई एक इंसान के पास पावर नहीं है. इट इज सो मच डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज सो मच डिस्ट्रीब्यूटेड कि एक इंसान सब कुछ कर ही नहीं रहा है. जैसे सेंट्रल बैंक सब कुछ करता है, आरबीआई डज ऑल द थिंग, गवर्नमेंट को सब करना पड़ता है. यहाँ पे हम हर इंसान के पास सब कुछ है. इट्स जस्ट लाइक गाइज, एवरीवन इज हैविंग मोबाइल फोन, एवरीवन इज हैविंग यूट्यूब. अब हर कोई रिपोर्टर है. एवरीवन कैन पोस्ट एनीथिंग इन यूट्यूब फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एवरीथिंग इज फ्री, जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे कोई भी माइनर बन सकता है, कोई वैलिडेट कर सकता है. यू डोंट नीड टू हैव अ कॉमर्स डिग्री फॉर दिस. वन मोर थिंग, 50% वाला रूल यहाँ दो जगह लगता है. माइनर वाली जगह तो लगेगा ही, राइट? अगर मैंने आपको पैसे भेज दिए फॉर एग्जाम्पल, राइट, एंड आपका बीच में मन हो गया, सर ये ट्रांजेक्शन चेंज करने पड़ेगी, यहाँ पे ये वाला कोड चेंज करना है. सर ये वाला कोड ना गलत आ गया है, आई वॉन्ट टू सेंड समथिंग, आई वॉन्ट टू चेंज इट. या एक और चीज, जैसे मैं आपको ये बताने वाला था, दिस इज द वेबसाइट ऑफ बिटकॉइन. ये हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे वैसे तो. लेकिन अगर बिटकॉइन कल को बोलता है, जैसे आपको तो माइंड में यही आना चाहिए ना, सर कल को बिटकॉइन ही गायब हो गया फिर, या कल को बिटकॉइन ने कुछ चेंजेस ला दिए फिर, तो क्या रहेगा? अगर कोई भी चेंज लाना है वेबसाइट में, या कोई भी चेंज लाना है इस ट्रांजैक्शन में, इस फिलॉसफी में, या ब्लॉकचेन चेंज करने में, तो सारे के सारे बिटकॉइन ऑनर से वोटिंग करवाई जाएगी. और 50% से ज्यादा वोट आए, ओनली देन इट विल बी अलाउड. जस्ट इमेजिन गाइज, कितनी सारी डेमोक्रेसी है इसमें, राइट? इवन अ स्मॉल चेंज, कल को अगर बिटकॉइन बोलता है जी हम थोड़ा सा टैक्स डालना चाहते हैं, हम थोड़ा सा टोकन अमाउंट करना चाहते हैं, ये सारे जो कहानी मैंने आपको सारी बताई, इसमें थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं, सो यू नीड टू टेक वोटिंग फ्रॉम द पीपल. इट कैन बी डन लाइक दैट. इट इज सिक्योर. जस्ट इमेजिन, पीपल आर डिसाइडिंग दीज थिंग्स. तो ये क्या हो रहा है अभी, जैसे इंटरनेट ने सारी दुनिया चेंज की, गाइस नाउ किसके पास पावर आई? पावर हम लोगों के पास है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे नीचे ग्राउंड लेवल में पावर आ रही है. थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ द हैंड, गोइंग आउट ऑफ द हैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम आरबीआई बेसिकली, राइट? नाउ वन मोर कंसेप्ट दैट कम्स ओवर हियर, प्रूफ ऑफ वर्क एंड स्कोप ऑफ वर्क. गाइस यहाँ पे ये लोग थे इतने सारे, फॉर एग्जाम्पल
अब इन सबको ना लॉटरी में अप्लाई करना पड़ता है, दे हैव टू अप्लाई फॉर द लॉटरी, इट इज सो रैंडम, राइट। फिर लॉटरी में अप्लाई करना पड़ता है, इनको बैठे रहना पड़ता है, तो बैठे रहने में इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात। दूसरी बात, मान लो मैंने मिस्टर एस को मौका दे दिया कि चलो आप इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करो, नहीं हुआ तो क्या पता मिस्टर एक्स कोई न्यूबी हुए, मेरी तरह आपकी तरह नए लोग हुए, हमें करना नहीं आया, या हमारा कंप्यूटर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर क्या होगा? तो फिर हमें टी को देना पड़ेगा, फिर यू को देना पड़ेगा। तो इसमें एक नुकसान ये है कि हमने रैंडमली तो चूज किया, पर क्या पता वो ओपन ही नहीं कर पाया इस मैथमेटिकल पजल को, ताकि इसको वैलिडेट कर पाए, राइट। एट द एंड फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को मिला, उन्होंने ये सब खोल के वैलिडेट कर दिया, बट जस्ट इमेजिन गाइस, इसमें कितने सारे लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, कितने सारे लोगों का एनर्जी वेस्ट हुई, कितने सारे लोगों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ, इतनी सारी बिजली इस्तेमाल हुई, कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क। जबकि एक इंसान को, जैसे मिस्टर एक्स ने ये सारा काम कर दिया, वैलिडेट कर दिया, उस इंसान को फिर बताना पड़ता है, जी मैंने ये कर दिया है, मुझे इतने बिटकॉइन मेरे खाते में डाल दीजिए। तो उनको प्रूफ ऑफ वर्क शो करना पड़ता है, बट दिस इज अ प्रोसेस जिसपे हिट एंड ट्रायल बहुत है, लकी ड्रॉ सिस्टम बहुत चलता है इसमें। तो नया कंसेप्ट आया एक, ताकि उस बिजली को बचाया जा सके, उस ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सके, बिकॉज एट द एंड ये देखो, ये प्रोसेसर्स है, दीज आर द प्रोसेसर्स, इतने बड़े बड़े प्रोसेसर्स लगते हैं लिटरली। द पर्सन इज हैंडलिंग दिस प्रोसेसर, ये देखो इस प्रोसेसर को ठीक कर रहा है, इट हैज फैंस एंड ऑल दिस, बिकॉज इट जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। एट द एंड ये अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। सो स्कोप ऑफ वर्क कंसेप्ट आया, इसमें क्या है, स्कोप ऑफ वर्क में इन सारे लोगों से थोड़ा सा टोकन अमाउंट लिया जाएगा, टोकन अमाउंट लाइक 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए, वो सबमिट करवाए जाएंगे इनसे कि भाई तुम लोग मुझे 2 करोड़ रुपए दो, अगर तुम सीरियस हो तो। अब इसमें क्या होगा, वही लोग पैसे दे पाएंगे जो सीरियस है और जिनके पास है पहले से। तो अब जिन जिन ने टोकन अमाउंट सबमिट कराया होगा, फर्स्ट थिंग इट शोज दैट दैट पर्सन इज सीरियस। सेकंड थिंग दैट शोज कि अगर इतना पैसा सबमिट करवाया है, तो ही मस्ट बी हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो उसको लॉटरी या वो टेंडर इशू हो जाएगा माइनिंग का। अब यहाँ पे क्या है, जिन्होंने बाकी ने करवाया, जिनको टेंडर नहीं मिल पाया, लकी ड्रॉ उनके लिए नहीं निकल पाया, उनके पैसे वापस हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ वर्क। इसका बेनिफिट ये है कि एटलीस्ट टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ, कि मिस्टर ओ को मिला उनसे नहीं हुआ, फिर पी को मिला फिर उनसे नहीं हुआ, सो दे आर वेस्टिंग द एनर्जी एंड टाइम। सो इंस्टेड हम उन्हीं लोगों को चूज करें दोज हु आर सीरियस, दिस इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ वर्क। एंड गाइस, दिस इज पब्लिक की एंड प्राइवेट की, ये तो आसान है, दीज आर जस्ट लाइक बैंक अकाउंट नंबर्स। अगर मुझे अपने बिटकॉइन एक्सेस करने हैं, तो मेरे पास कुछ कोड और मेरे पास कुछ नंबर्स होंगे, आई नीड दोज नंबर्स, उनके बिना मैं बिटकॉइन एक्सेस ही नहीं कर सकता। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि प्रणय व्यास की ईमेल आईडी डलेगी एंड आई विल ओपन पासवर्ड जिसको गवर्नमेंट भी देख रही है, नो, इट्स वेरी सिक्योर। तो नंबर्स आर क्वाइट लॉन्ग अल्फान्यूमेरिक नंबर्स, ये कीज होती है, इसके बिना आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने इसको। एंड पब्लिक की होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ट्रांजैक्शन करनी है, तो दिस इज द की आई विल बी शेयरिंग टू यू, कि भाई ये मेरी की है, इस की में आपने ऐसे ट्रांजैक्शन करनी है, अगर बिटकॉइन बेचने हैं या खरीदने हैं। सो दिस इज द की विच विल बी यूज्ड। सो दीज की प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दीज आर जस्ट लाइक बैंक अकाउंट नंबर्स, राइट। बट बैंक अकाउंट नंबर्स आसान होते हैं, उनके पास केवाईसी होती है, दे आर लिंक्ड विद माय नेम बेसिकली, एंड उनको गवर्नमेंट देख सकती है। दीज कीज आर वेरी लॉन्ग, वेरी सिक्योर एंड वेरी एनक्रिप्टेड। होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। डिमांड वाली साइड हमने कर लिया, वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द डिमांड साइड, दैट यस डिमांड कैन बी अल्टर्ड। जैसे एलोन मस्क ने बढ़ाया घटाया, पंप एंड डंप, दैट वाज नॉट अ गुड मूव, और वो दैट इज इन अनएथिकल एंड दैट इज इलीगल इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। बट यहाँ पे हम कुछ और चीज भी देखेंगे, व्हाई बिटकॉइन इज गुड, राइट। सो बिटकॉइन ऑफर्स फ्रैक्शनल, नो, बिटकॉइन कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। जैसे 2000 का नोट है, 2000 के नोट को आप 400-500 के नोट में रख सकते हो, 400-500 के नोट को आप 100-100 के नोट्स में रख सकते हो, 500, उन 500 को आप 50-50 के दो नोट्स, या 10-10 के पांच नोट, 50, 1-1 रुपए के 50 के, इट, करेंसी कैन बी डिवाइडेड। सिमिलरली बिटकॉइन कैन बी डिवाइडेड। आई कैन बाय 100 बिटकॉइंस, आई कैन बाय 0.1 बिटकॉइन। गाइस, आई एम सो सॉरी। सो इट कैन बी यूज एज अ फ्रैक्शनल करेंसी, बिकॉज करेंसी में यही बेनिफिट रहता है हमारे पास कि उसको वी कैन डिवाइड इट, सिमिलरली वी कैन डिवाइड बिटकॉइन एज वेल। गाइस, बिटकॉइन की डिमांड कैन बी अल्टर्ड, बट सप्लाई इज फिक्स्ड। देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस,
जिसमें से अभी तक इफ आई टेल यू अराउंड 19 मिलियन हैव बीन माइंड, राइट? माइनिंग से ही बिटकॉइन जनरेट होता है, आई होप यू नो दिस थिंग. सो rest still there are few bitcoins which are remaining, right? But supply is fixed. तो ये अच्छी बात थी इसकी. Means we can't print currency. जैसे हम डॉलर्स को तो प्रिंट कर सकते हैं, रुपीस को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम बिटकॉइन को प्रिंट नहीं कर सकते. वी कैन जस्ट ट्रांजैक्ट. और ट्रांजैक्शन कैसे होगी? डिमांड एंड सप्लाई में. मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था ना. नाउ ऑल द थिंग्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, ऑल द थिंग्स विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू ऑल द थिंग्स. जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था वन वर्ल्ड वन करेंसी हो सकती है यहाँ पे, व्हाई नॉट? बिकॉज सप्लाई इज फिक्स्ड. अब कम से कम डेट क्राइसिस की दिक्कत तो नहीं आएगी पूरे वर्ल्ड में, कि जब डॉलर्स आप जितने मर्जी प्रिंट कर लो, रुपीज आप जितने मर्जी प्रिंट कर लो, वो दिक्कत नहीं है यहाँ पे. बिकॉज सप्लाई इज फिक्स्ड. अब वो प्रिंट नहीं हो पाएगा. हाँ, बिटकॉइन की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट दैट्स फाइन, राइट? इट्स अ डिजिटल एसेट. गाइस, जैसे हमारा Google Pay and all those, that is a digital currency. Again, it's just like that. It's a digital assets because it is using digital platform. I hope this is okay. NFT के बारे में हम पढ़ेंगे in next coming class. But it is also a digital asset, right? It is decentralized. अभी तक पूरे सिस्टम में गाइस हमने कहीं भी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, इन सब का रोल नहीं देखा. There was no role, but still transactions were taking place. Transaction तो सारी हुई है ना. So there was no role of anybody over here. It is the future. We will democratize the entire finance. मतलब अब हमें बैंक में जाके वो सब करने की जरूरत नहीं है. We can directly do the things, right? So this is the future, guys. It is cryptographic. Cryptographic आप ऐसे समझो, व्हाट्सएप के मैसेजेस भी encrypted होते हैं. Means no one third party can't read it because they are so much encrypted. Similarly, these transactions in cryptocurrency are encrypted. That is why it is called as cryptographic. गाइज, आई होप इस सारे वीडियो के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. इट इज एनक्रिप्टेड, एंड वंस इट इज एनक्रिप्टेड, इट इज लॉक्ड, एंड ईच लॉक बिकम्स अ ब्लॉक. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन. अब आई होप गाइज आपके एक एक कंसेप्ट आपस में रिलेट हो गए सारे के सारे. मैंने कहा था यू हैव टू स्टिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. नाउ दीज आर ब्लॉक्स एंड ईच ब्लॉक इज सिक्योर. एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक लॉक्ड है. इस ब्लॉक में इस ब्लॉक का कोड है, इसमें इसका हैशटैग है, इसमें इसका हैशटैग, so these are linked. It becomes a chain, blockchain, right? Now ब्लॉकचेन से हम ट्रेस कर सकते हैं चीजों को कि अच्छा ये ब्लॉक किसके साथ जुड़ा था, ये ब्लॉक किसके साथ जुड़ा है, बिकॉज वी हैव प्रीवियस ट्रांजैक्शन हैशटैग्स, राइट? तो इसको चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, जस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल. Guys, it can be used in money laundering. ये एक इसका नुकसान है, because if it is so hidden, ये इतना hidden हो जाता है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है. सो इट्स अ ड्रॉबैक ओवर हियर. एंड इसमें पंप एंड डंप होता है. पंप एंड डंप मीन्स इफ आई एम अ वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, आई कैन से समथिंग एंड बिटकॉइन पूरा क्रैश हो सकता है. यू माइट हैव हर्ड प्रीवियसली एज वेल कि बिटकॉइन क्रैश हो गए, क्रिप्टो करेंसी क्रैश. ये डिमांड एंड सप्लाई में है, तो जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, राइट? तो क्रैश मूवमेंट इट्स सो वॉलेटाइल कि कभी आपको ये 8 करोड़ का मिल जाएगा एक बिटकॉइन, तो कभी 6 करोड़, राइट? सो इट इज वेरी वॉलेटाइल. सेकेंडली गाइज, यहाँ पे देयर इज नो सेंट्रल एजेंसी. इसमें कोई देखने वाला नहीं है, नो वन इज वॉचिंग इट एक्चुअली. तो उसकी वजह से नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट. आम इंसान को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है. स्टॉक मार्केट में सेबी है. सेबी इज देयर टू प्रिवेंट स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स. तो छोटे लोगों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, राइट? एंड इसमें पावर एलोन मस्क जैसे लोगों के पास आएगी, जो बहुत सारे बिटकॉइंस लेके बैठे हैं, एफआईआईज, बिग एफआईआईज, एंड दे कैन रेगुलेट और चेंज द डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो पंप एंड डंप कैन बी डन ओवर हियर. वी हैव टू वेरी वॉचफुल. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए. सबसे पहले हम बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट, राइट? इससे पहले हम लोग कर लेते हैं रिस्क एंड रिटर्न ऑफ बिटकॉइन. बिकॉज कौन सी, इट्स हमने अभी डिस्कस किया, इट कैन बी यूज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग. इट कैन बी मिसयूज्ड एज वेल मेनी टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है देखने के लिए, गवर्नमेंट इज नॉट वॉचिंग इट. तो गाइज मैनी पॉन्जी स्कीम्स में अराइज. आपने सुना होगा पीछे जैसे बहुत सारे एप्स थी, on YouTubers are also selling that those things like हमारे ऐप से आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, you can do this and that.
but many of that were fraud. Many of those were fraud, and many of those were Ponzi schemes. Ponzi schemes means they come and go and they take your money, right? So many fake apps. So you have to be very watchful, guys, for this. कि कहीं जो ऐप में आप यूज कर रहे हो, जो ऐप आप ट्रेड कर रहे हो, इज इट अ गुड ऐप और नॉट? पॉन्जी स्कीम तो नहीं है वो, पैसा जल्दी बनाने की स्कीम, राइट? पंप एंड डंप तो नहीं हो रहा, मींस इट इज मोर एडवाइजेबल, बिकॉज यहाँ पे सेबी नहीं है कि आपकी सीलिंग लगा दे, किसी ज्यादा शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ऐसे ज्यादा बाय नहीं कर सकते, राइट? इन क्रिप्टो करेंसी गाइस द थिंग इज दैट देयर इज नो गवर्नमेंट टू वॉच यू, इट्स टू रिस्की, राइट? ये बहुत ज्यादा रिस्की है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट इसमें पंप एंड डंप एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी यूज की जा सकती हैं टू चेंज द प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन, राइट? नाउ रिटर्न्स. सो सर रिटर्न कैसे रहते हैं? रिटर्न्स आर हाईएस्ट गाइस. इट इज टू वॉलेटाइल, एंड बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी रिटर्न्स आर हाईएस्ट. अगर मैं बोलूं इसका रिटर्न इक्विटी से भी बहुत ज्यादा है. We are going to see in the practicals. लेकिन as such, returns are highest amongst all the financial assets. अभी तक जितने भी financial assets हमने पढ़े हैं investment banking में, सबसे ज्यादा return इसमें है. So it means risk भी highest है सभी में. As I told you, if the risk is highest, returns are highest इसमें, returns are also highest and risks are also highest. It's too volatile, guys. Very, very, very volatile. क्रैश होगा तो करोड़ में ही होगा, और प्रॉफिट्स होंगे तो इट विल बी इनसेन, इनसेन, राइट? डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा है ये. मीन सर हम इन्वेस्ट कैसे करें, कितना इन्वेस्ट करें? सी, आई विल नेवर रेकमेंड यू कि आप पूरा 100% सैलरी अपनी इन्वेस्ट कर दो इसमें, बट आई कैन रेकमेंड यू दैट आप 5% आप ले सकते हो हिट. यू कैन जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, इट इज अ गुड डाइवर्सिफिकेशन टूल. Not 100% investment. And no, it's just like never put your baskets in, never put your eggs in just one single basket, just like that. कि थोड़ा बहुत डाल दो जिसका दुख ना हो आपको लॉस होते टाइम, राइट? सो यू कैन यूज दैट स्ट्रेटजी. और अभी रेगुलेटर्स क्या सोच रहे हैं, सो रेगुलेटर्स ने अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया. मींस कंट्रीज, जस्ट वन और टू कंट्रीज हु हैव एक्सेप्टेड बिटकॉइंस. बाकी बिटकॉइंस को अभी कंट्रीज ने खुली छूट नहीं दी है, क्रिप्टो करेंसी को खुली छूट नहीं दी है. व्हाई? जस्ट इमेजिन गाइस, अगर सब क्रिप्टो में आ गया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रुपी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डॉलर? सब क्रिप्टो में ही चला तो एवरीथिंग विल कोलैप्स गाइस. आई होप अब तो आपको सब समझ आ गया होगा. सेंट्रल बैंक्स, द बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसीज, एवरीथिंग विल कोलैप्स. पैसे को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जस्ट इमेजिन, हम सिर्फ अपनी कंट्री में अगर सोचें, राइट? इलेक्शंस होते हैं, पैसा कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, एटलीस्ट वी कैन ट्रेस डाउन द थिंग्स. यहाँ पे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और एनोनिमस है सब कुछ, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. तभी गवर्नमेंट ने इसको पकड़ के रखा है अभी. गवर्नमेंट हैव पुट अ लॉट ऑफ टैक्सेशन ऑन दिस. गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेशन लगा के रखी है कि इसको छूट मत दो. वंस इट्स आउट ऑफ द हैंड, इट्स जस्ट लाइक जिनी एक बार बॉटल से निकल गया, सो इट विल बी आउट गाइस. जस्ट लाइक यूट्यूब, जस्ट लाइक इंटरनेट. अब इंटरनेट हर किसी के पास है, यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस. नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग्स. सर अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? इन्वेस्ट से पहले लेट्स कंप्लीट दिस थिंग फर्स्ट एंड देन विल कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट. अब ये कौन से कंट्री में एक्सेप्ट होता है फिलहाल? फिलहाल एल सेल्वाडोर इज अ कंट्री, सो वहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया है उन्होंने. सो वहां पे इट एक्ट्स एज अ करेंसी. इट मींस कुछ कंट्रीज ने ओपन इसको किया है, बट गाइस एज आई टोल्ड यू, सिर्फ ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक माना है इसको लीगल टेंडर. इन 2021 एल सेल्वाडोर एक्सेप्टेड बिटकॉइन एज लीगल टेंडर. मैंने आपको कहा है गाइस, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिसको रोका कभी नहीं जा सकते. कांट स्टॉप इट. यू कैन डिले इट, लेकिन वो होगा ही होगा. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसको लीगल टेंडर माना था 2022 में. अब बिटकॉइन इज एक्सेप्टेड इन यूएसए, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर, यूएई, बट इट इज वेरी हेavily regulated. बहुत, मैंने कहा है ना आपको, कस के पकड़ा है. Countries don't let it loose, because once it is loose, genie is out from the bottle, it's very difficult to control. अब इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया में वी हैव नॉट कंसीडर्ड इट एज अ लीगल टेंडर, राइट? बट इट इज वेरी हाईली टैक्स्ड. 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो गेन्स, राइट? 1% TDS on all the transaction over 50,000. It is not banned, guys. It is strictly monitored. बहुत ध्यान से इसको देखा जा रहा है, right? And why do you think all the countries are afraid of cryptocurrency so much? Now you have the reason. The reason is
गाइस अगर क्रिप्टो करेंसी फुल फ्लेज उसमें आ गई, मीन इट्स अ टेक्नोलॉजी जिसको हमने अभी बॉटल में बंद करके रखा है, जीनी विच इज इनसाइड द बॉटल इसको बंद करके रखा है। वंस इट्स आउट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुट द जीनी बैक इन द बॉटल। आपकी बैंकिंग सिस्टम कैन कोलैप्स, बैंक्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, राइट? यू डोंट नीड एनीथिंग बैंक में जाके पासबुक को वो प्रिंट आउट करवा के एंड ऑल दैट, नो नीड। लेजर्स विल बी एवरीवेयर, आप लेजर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, राइट? नो टाइम लिमिट, रात को सुबह, इट इज वेरी सिक्योर, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। तो बैंकिंग सिस्टम विल कोलैप्स, सेंट्रल बैंक्स विल कोलैप्स, गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगा इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाना, राइट? एंड मॉनेटरी पॉलिसी विल रियली कोलैप्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन हम मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल कर, दैट इज व्हाई इट इज स्टिल अंडर सो मच स्क्रूटनी। इतनी स्क्रूटनी में ये सारी चीजें इसीलिए हैं, राइट? नाउ what are the other applications? Since blockchain started in 2008, cryptocurrency 2008 से start हुआ था, उसके बाद हमने बहुत चीजें improve की हैं guys. So blockchain is also used in record keeping. मतलब जो रियल एस्टेट की रिकॉर्ड कीपिंग है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें भी ये आ रहा है, बिकॉज एक बार जो डेटा चढ़ा दिया उसको बाद में कोई चेंज ना कर पाए, राइट? हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का डेटा, इट इज अगेन वी यूज द सेम थिंग। सर्टिफिकेट्स, जस्ट इमेजिन गाइस आपके सर्टिफिकेट को कोई छेड़छाड़ कर दे तो अब जो सर्टिफिकेट आप कॉलेज से पास आउट होके लगाओगे, गवर्नमेंट के सर्वर में जाएगा, जिसको ब्लॉकचेन के साथ सील कर दिया जाएगा, विच कांट बी अल्टर्ड एज सच। तो वहां पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। वोटिंग सिस्टम में भी ऐसा यूज करने का प्लान है, बिकॉज वंस यू पुट योर वोट, आपने वोट डाल दिया, इट विल बी लॉक्ड विद द कोड। आप उसको एक्सेस नहीं, उसको नहीं चेंज कर सकते। सो दीज आर द गुड future of blockchain technology applications. These are the applications which can be where blockchain technology can use the same concept which was here present over here, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? ना मेन चीज सर, अब ये बताओ कैसे इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है, वो अपना इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करते हैं, जस्ट लाइक एन आईपीओ। दिस इज द प्राइमरी मार्केट। जब बिटकॉइन पहली बार इशू हुआ था, जैसे ये बिटकॉइन की वेबसाइट है, इन्होंने अनाउंस किया था कि सर, जो जो खरीदना चाहता है अभी खरीद लो, सस्ते में है, जस्ट लाइक एन आईपीओ। जब भी कंपनी आती है अपना आईपीओ इशू करती है, राइट? तो आप वहां पे खरीद लो, शेयर्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे। अगर आप 10-15 साल के बाद खरीदोगे, इट विल बी वेरी हाईली इन्फ्लेटेड। सो एक तो रास्ता ये है, आप नजर रखो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी कब कब लॉन्च हो रही है, उसके बारे में पढ़ो। तो उसके इनिशियल लॉन्च में अगर आप अप्लाई करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। सस्ते में मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। हाँ, इसमें चांस नहीं है, बिकॉज हिस्टोरिकल डेटा नहीं रहेगा तो क्रैश भी हो सकता है और आपको घाटे, मीन्स द प्राइजेस में नॉट गो दैट हाई, राइट? सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ऐप वजीर एक्स, इंडिया में तो चल रही है फिलहाल। तो आप इस ऐप में एक अपना वॉलेट बना सकते हो। अब गाइस, इस वॉलेट के लिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मैंने कहा है ना, यहाँ पे हमने बहुत रेगुलेशन रखी है। तो इससे पहले मेरे को ये भी बताना पड़ेगा आपको, बिटकॉइन, बिटकॉइन में सी गाइस, यहाँ पे ना एक्सचेंजेस हैं। दीज आर द एक्सचेंजेस जहाँ पे आप अपने बिटकॉइन या अपने पैसे दूसरी जगह भेज सकते हो, स्पेशली बिटकॉइंस। अब यहाँ पे जो सबसे ट्रिकी और सबसे रिस्की है, दैट इज पीयर टू पीयर। इस पीयर टू पीयर में गाइस, आप, मैं, आपको, मीन्स whosoever is sitting on that side, I can send the money directly without involvement of any other person apart from minor। और इसमें कोई बैंक को किसी को पता नहीं लगेगा, बिल्कुल एनोनिमस है, पीयर टू पीयर। एक इंसान दूसरे इंसान को डायरेक्ट पैसा भेज दे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। एंड दिस इज वेरी मच एनक्रिप्टेड। एक तरीका तो ये है, राइट? तो ये जो मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, ये प्रैक्टिकल है उसका। तो आपने अगर आज अमेरिका पैसे भेजने हैं और किसी को पता नहीं लगना देना चाहते, यू कैन यूज दिस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनक्रिप्ट, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नो वन विल एवर गेट टू नो। और एल्स आप एक और चीज कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बिटकॉइन को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो वैसे ही ये एक्सचेंजेस हैं, हर कंट्री ने अपनी एक्सचेंज बना दी पहले ही, ताकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, जीनी आउट ऑफ कंट्रोल आई होप ना जाए, तो लोग इसको ना इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इंडिया में जो आज की काफी फेमस है, दैट इज वजीर एक्स। सो आई डोंट वांट कि, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि आई वांट यू टू डू ब्लाइंड फेथ ऑन दिस, बिकॉज आजकल एप्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देयर वाज वन मोर ऐप, बायएंस समथिंग, उनके सीईओ को तो जेल हुई थी। तो you have to keep an eye on this, but इंडिया में ये वाली एक्सचेंज चल रही है, दिस इज द एक्सचेंज। ओवर here you can buy and sell your bitcoins।
एंड यू कैन ट्रेड ऑन द क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको मिल जाएंगी। यू कैन इजिली ट्रेड ऑन, यहाँ पे आपको सारे ग्राफ्स वगैरह मिल जाएंगे। यू कैन इजिली ट्रेड ऑन ऑल द ग्राफ्स गाइस, टेक्निकल चार्ट्स आपके सारे यहाँ लग जाते हैं। यू कैन इजिली डू दैट। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने वॉलेट सिस्टम बनाया है, देयर इज अ वॉलेट सिस्टम। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब आप पीयर टू पीयर भेज रहे थे, डोंट नीड टू डू एनी रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ से बैठ के पैसा वहां भेज दो। बट सारी गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड, व्हाट दे डिड, यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और इलीगल एक्टिविटीज में ना यूज हो, तो इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन करने पड़े आपको एक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा, इसके लिए केवाईसी करने पड़ेगी अभी तक तो, राइट। इन फ्यूचर ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर हो जाएगा, बट अभी इंडिया में तो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड इन द एक्सचेंज, और एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए यू हैव टू डू द केवाईसी सो दैट गवर्नमेंट कैन टैक्स यू अकॉर्डिंगली। तो एक तरीका ये है कि आप एक एक्सचेंज में अपने आप को लिंक कर दो, राइट, एंड उस एक्सचेंज के वॉलेट से यू कैन बाय एंड सेल, और यू कैन डू द ट्रेडिंग एज वेल, इसमें ट्रेडिंग भी हो जाती है। तो दिस इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इट विल बी, देयर विल बी अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइमरी मार्केट इज जस्ट लाइक एन आईपीओ, वो जब इशू होगा तब भी खरीद सकते हैं। सो दिस इज वे नंबर वन। ठीक है सर, हमें अभी नॉलेज नहीं है, हम और क्या कर सकते हैं? देयर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल ओवर हियर। स्टेप नंबर वन, म्यूचुअल फंड्स। ऐसे बहुत म्यूचुअल फंड होंगे और ऐसे बहुत म्यूचुअल फंड हैं जो आपसे पैसा लेके क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं। तो उसमें आपके दिमाग को लोचा नहीं है कि कौन से वाले में लगाना है, कौन से में नहीं लगाना है। इस म्यूचुअल फंड में लगाओ, इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं रहेगी। 100 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, या गुड टू गो, क्योंकि इतने में तो क्रिप्टो नहीं आएगा। तो यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विच हु आर फर्दर इन्वेस्टिंग योर मनी इन क्रिप्टो, जो आपका पैसा लेके आगे पैसा लगा रहे हैं। हेज फंड्स आर आल्सो म्यूचुअल फंड्स, बट यहाँ पे थोड़े इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, तो इसको आप अभी हटा सकते हो। बट इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन गूगल इट आउट कि इंडिया में कौन से हेज फंड्स क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज हेज फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिनिमम बहुत ज्यादा रहती है। ईटीएफ्स में आप पैसा लगा सकते हो। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस ईटीएफ्स इन द म्यूचुअल फंड क्लास, आई वांट यू टू सी दैट। ईटीएफ्स आर आल्सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये वो कंपनीज हैं जो आपका पैसा, अगेन दीज आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जो आपका पैसा स्टॉक इसमें लगाती है क्रिप्टो में। तो यहाँ पे गाइज आपका 500, 100, 500, 1000, 2000 से काम चल जाएगा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, अगर ज्यादा पैसा नहीं भी है और आपने इसमें लगाना चाहते हो तो। इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप कर सकते हो ट्रेड ऑन ऑन द क्रिप्टो करेंसी। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, इट इज अ ट्रेडिंग, इट्स नॉट समथिंग यू कैन बाय, राइट। और एज यू कैन डू, यू कैन इन्वेस्ट ऑन दोज कंपनीज हु इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। देखो, म्यूचुअल फंड वाज एन एएमसी, ये तो आपसे पैसा लेके इसी में लगाते हैं। बट ऐसी बहुत कंपनीज होती हैं जिनका काम ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। देयर मल्टीपल कंपनीज। आई वांट यू टू, दिस इज योर होमवर्क गाइस, गूगल करके देखो या चैट जीपीटी से पूछो, विच आर द कंपनीज हु ट्रेड और हु इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक इन क्रिप्टो, राइट। और जो निफ्टी 50 में है, इफ नॉट निफ्टी 50, हु आर रजिस्टर्ड इन बीएससी और एनएससी। ऐसी बहुत कंपनी होगी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। तो आप क्रिप्टो में मत लगाओ डायरेक्टली, आप इन कंपनीज में लगा दो। जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी तो आप भी प्रॉफिट कमाओगे। सो दीज आर द इनडायरेक्ट वेज बाय विच यू कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। सर ये सब तो ठीक है, अब थोड़ा दिखा भी दो। सो आपको अगर इंडिया में स्टार्ट करना है, इंडिया में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा जहां पे आपको वॉलेट खरीदना पड़ेगा, जिस वॉलेट में आप पैसा डाल सको। मेक श्योर इट इज अ humble रिक्वायरमेंट, humble रिक्वेस्ट एंड डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ यू। मेक श्योर उसमें फ्रॉड ना हो, बिकॉज इसमें पॉन्जी स्कीम्स बहुत है, बहुत सारी एप्स है क्रिप्टो वाली, गलत में मत फंसना, राइट। आई एम नॉट क्या बोलते हैं, आई एम नॉट encouraging this app, I'm not advertising this app, but this is app जो authentic है वैसे तो फिलहाल। I don't know the future, but do your own research on this, right? So you can buy a wallet, you can do the KYC over here, and you can start investing and you can start the trading part over here. यहाँ पे आपको सारे coins मिल जाएंगे and you can start doing that, right? There is one more way guys, ये है बिटकॉइन की, बिटकॉइन का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से सब स्टार्ट हुआ था। इट्स अ प्लेटफॉर्म, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। बिटकॉइन कोई ऐसा कोई कॉइन नहीं है, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन। इस बिटकॉइन में आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया वो सारा कुछ यहाँ पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ पे यू कैन रीड ऑल द थिंग्स, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिजनेसेस इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे इंडिविजुअल्स कैसे काम करते हैं, कैन सी द प्रोसेस एज वेल ओवर हियर। The most important thing that you can see over here, the exchanges they had mentioned, यहाँ पे इन्होंने कुछ exchanges mention की हैं। You can use these exchanges for buying and selling। यहाँ peer to peer भी है
और वैसे भी है कि इफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग और इफ यू वांट टू सेंड मनी टू समवन, तो यू कैन यूज दीज एक्सचेंजेस। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिटकॉइन, आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज दैट, see, this dog seems to be very cute. This is for Dogecoin, right? जब भी यहाँ इनका इनिशियल कॉइन इशू हुआ था, इन वेबसाइट्स में ही होता है। सो यू नीड टू स्टे इन टच विद द न्यूज कि कैसे कौन सा नया कॉइन इशू हो रहा है, नई क्रिप्टो करेंसी इशू हो रही है, उस टाइम लिया जाए तो इट्स बेटर। नाउ सिंस इट वर्क्स अंडर अंडर यू कैन से डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट, जैसे ये बिटकॉइन था, व्हेन इट स्टार्टेड एट 40,000 38,000, ये देखो 30,000 का एक बिटकॉइन था, राइट, 2016 में। और कुछ टाइम न्यूज सुनता रहता तो शायद ठीक है। Now the same Bitcoin, one Bitcoin is costing you, 8 crore, something like that. Now over here, what can be done? What can be done, सर? अब तो बहुत लेट हो गया। जब जब मार्केट नीचे गिरे, सिर्फ तब तब इन्वेस्ट करो, बिकॉज इट इज डिमांड एंड सप्लाई, एंड वी शुड बी इन्वेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मार्केट नीचे गिरे। दैट इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। इंस्टेड कि हम पीक्स में इन्वेस्ट करें, इट इज नॉट एडवाइजेबल। जैसे मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता था, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करे, ही मे मेक सम लॉसेस। अब मार्केट नीचे गिरा, यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता था। सो वेन एवर द मार्केट्स आर ऑन टॉप, ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वेन एवर मार्केट्स आर क्रैशिंग, उस टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंस बिटकॉइन इज सो ओवर इन्फ्लेटेड राइट नाउ, अब तो आउट ऑफ रेंज है, यू नीड टू, आप ऐसा कर सकते हैं इस टाइम में, जस्ट अ मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फॉर द डोज कॉइन, वेट फॉर द क्रैशेस। जब जब क्रैश आ रहा है, तब तब इफ यू इन्वेस्ट, दैट वुड बी बिट फाइन और बेटर, राइट। तो यू कैन इन्वेस्ट, और जो चीज रेंज में है, बिकॉज गाइस देयर आर फ्यू बिटकॉइंस व्हिच आर, देयर आर फ्यू क्रिप्टो करेंसीज व्हिच आर नॉट डूइंग गुड एज वेल, सम क्रिप्टो करेंसीज आर डूइंग गुड। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, that if you want to invest in India, you need to have a wallet in an app, वहां से आप कर सकते हैं। If you already have bitcoins and if you want to send it to somebody, you can use these exchanges। ये सभी exchange है हर country में, but peer to peer मैंने example ये दिया because this is the real use of bitcoins जो future में होने वाला है। अभी ये सारी countries ने अपनी अपनी exchanges खोल के रखी हैं कि ये चीज, ये जीनी बॉटल से बाहर ना निकल जाए, बिकॉज वंस इट्स आउट, इट्स आउट, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। वंस इंटरनेट इज विद एवरीबडी, इट्स, उस इंटरनेट को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। आई होप